अस्सलाम वालेकुम जी। प्रेम साहब और मियां अंजुम निसार साहब और बाकी साथी मेरा ख्याल है 1-2 मिनट में हमें ज्वाइन कर लेंगे तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। रहमान रहीम इन्ना आतैना कल कौसर सल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अब्तर। वेलकम इमरान साहब इस्लामाबाद में हमारे लीड कर रहे हैं प्रोजेक्ट की टीम को और उनकी बहुत मेहरबानी इरफान साहब के साथ कलाम पाक से हमने इफ्तिताह कर लिया है जी और बस 1-2 मिनट आप दे दें तो फिर बाकी साथियों को जी बात। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सॉरी लेट हो गया, मैं एक डेलीगेशन आया था, थोड़ा लंबा हो गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। ये पाकिस्तान सिंगल विंडो एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, और अब अगर इस पे अमल हो जाता है तो आई थिंक इस जैसे मुल्क में ये ख्वाब वाली बात है, क्योंकि इसमें सारे डिपार्टमेंट्स जो कस्टम से रिलेटेड हैं, जो क्लियरेंस पे ज़रूरत पड़ती है एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट पे, वो सारे एक जगह होंगे और सब लोगों के मसले जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। लेट्स सी ये कब से इम्प्लीमेंट हो रहा है। सर ये इसकी सॉफ्ट लॉन्च शायद शुरू हो चुकी है और ग्रेजुअली ये इसको सॉफ्ट लॉन्च नहीं करे, इसको बस करेक्ट ट्रेंडिंग वाली लॉन्च करे भाई, वरना सॉफ्ट ही रह जाएगा। चलिए जी, आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। शबीर भाई अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, लाहौर ऑफिस वेलकम हमारे मियां मोहम्मद अली साहब और उनकी टीम। कुर्बान अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप वहाँ पे में लीड कर रहे हैं इस्लामाबाद ऑफिस से, और बाकी हमारी एफपीआर की यहाँ टीम आ चुकी है। तो कराची में भी एफपीआर की टीम हमारे साथ मौजूद है प्रोजेक्ट की, और पाकिस्तान सिंगल विंडो की, और वहाँ पे भी है। और ख्वाजा शहजाद साहब अगर आप इस पे 1-2 मिनट कुछ जरा सा कुछ बात कर रहे हैं तो मेहरबानी होगी। अच्छा ठीक है। वेलकम मियां अंजुम निसार साहब हमारे चेयरमैन भी है, हमारे इमीडिएट पास प्रेसिडेंट भी हैं, तो वो भी आगे हैं और हम इसका बाकायदा आगाज करते हैं। अच्छा, जैसे एज वी ऑल नो दैट पाकिस्तान सिंगल विंडो इज गोइंग टू रोल अप इन कपल ऑफ मंथ्स एंड बीइंग अ लीडिंग agency we appreciate that the Pakistan custom is has taken up a leading role in it. Earlier it was under the Ministry of Commerce, it is believed, and now the Pakistan custom is taking over it. We all know that the flowchart window solution and the cross-border trade in which all the stakeholders that are in government departments, banks, traders will be on one single portal. And it has really become like a dream that, as Mr. President explained, that all the government departments will be linked together, and hope if they can deliver in the way it can. But apparently there is apprehension in the trade before we started into it and communicating about this webinar. And people asked a question that will it be implemented with the other departments with the same spirit, because it involves all 42 departments of the 40 plus departments of the Pakistan government. So we have apprehensions on it, how the system will work, and hopefully Mr. Imran Saab and his team can explain the system and how the banks will be changing and transforming in this thing. So I would request Mr. Imran Saab, I would request, before I request Mr. Imran Saab, I would like to welcome Mr. Khurram Ijaz as well, because he's the board of the director of the Pakistan Single Window, and which fortunately Mr. President is here, and he is the person who nominated from the FPCCI that from the FPCCI the trade representation will be done through Mr. Khurram Ijaz. And we expect that he's able to deliver and communicate our apprehensions and concerns in the FPR, this Pakistan single window. Thank you very much. And I would like to hand over to Islamabad office. Before I again hand over to Islamabad office, I would like Mr. President, immediate President, our Chairman, Mr. Anjum Nisar, to say a couple of words, and then we move on to Islamabad office. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I'd like to congratulate all the concerned authorities who have done hard work to complete this project. And I believe that by virtue of this, the business community will
have ease of doing business, because a lot of time which were in the past being wasted one way or another, it will be, now all the documents from all the concerned ministries will be compiled, and it will be in shape of a single window. But definitely, I think this will give a lot of support, and as well as a lot of money which was uh, spent in the shape of damage could be avoided, and I think this is the right way to move forward. I believe that the things will be moved forward with passion, and it will be taken care of, and nothing would go wrong in between. So, as the opportunity last year, it came to FPCCI, so we nominated Mr. Khurram Ijaz Saab, who was then the Vice President of FPCCI, and I think he has also always talked high about this project. So I believe this will give a lot of benefits to the business community, and it will shorten the time frame of all the proceedings which are going on in customs and various departments of the country. Thank you very much. आपके बात में we would like to hand over to Islamabad, and then after the presentation we'll take on the questions. Thank you. Thank you very much जी. अस्सलाम वालेकुम. मियां जो निसार साहब, नासिर मकबू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बाकी जो साथी हैं एफपीसीसीआई में पूरे पाकिस्तान में, आपका शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया है कि आपके साथ मिलके जो पाकिस्तान सिंगल विंडो के हवाले से हम अवेयरनेस सेशन के ऊपर बात करना चाह रहे हैं और जो हमारे एंड यूजर्स हैं उन तक हम रीच आउट करना चाह रहे हैं, उसमें आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया. स्टार्ट करने के लिए जी आगे जाएं प्लीज. जो आज की प्रेजेंटेशन है, इसकी जो थीम है उसमें ये है कि जी पाकिस्तान सिंगल विंडो क्या चीज़ है और ये क्या करेगी, इसके क्या फीचर्स हैं, हम कहाँ तक पहुँचे हैं और आगे क्या प्लान्स हैं. तो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा. जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की एक मेन इम्पेटस या ड्राइवर की हैसियत रखता है, और पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है कि वो ट्रांजिट ट्रेड और जो इंटरनेशनल ट्रेड में रीजनल हब बन सके. लेकिन जो हमारा इस वक्त का निज़ाम है इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज करने का, उसमें काफ़ी मुश्किलात हैं, और उस मुश्किलात को हल करने के लिए एक सलूशन जो बाकी मुल्कों ने इम्प्लीमेंट किया है वो नेशनल सिंगल विंडो कहलाता है. और WTO के जो एग्रीमेंट हमने साइन किया है उसमें 2022 तक इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना एक हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है. इस वक्त पाकिस्तान के इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 74 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांजिट ट्रेड को रेगुलेट करते हैं, और उसमें उनका एक रोल है जिसमें उनकी अप्रूवल के बगैर ही ट्रेड नहीं हो सकता. ये जो डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे इस स्लाइड में आप देखेंगे कि वो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन इशू करते हैं, और ये पिछले साल तकरीबन कोई जो 2.4 मिलियन के करीब कंटेनर्स 2020 इक्विवेलेंट ट्रेड हुए हैं, उसमें ये आप देखेंगे कि 2 मिलियन के करीब ये जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, LPC उसको कहते हैं, लाइसेंसेस, परमिट, सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट्स, ये इशू हुए हैं. नेक्स्ट. अच्छा, इन डॉक्यूमेंटेशन की कॉस्ट है जो ट्रेड को आपको बेयर करनी पड़ रही है, और वो यहाँ पे लिस्टेड एक कंपैरिजन हमने दिया हुआ है जो पाकिस्तान, इंडिया और कोरिया को दिखा रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं तो आपकी जो कॉस्ट आती है वो $417 आती है एक कंटेनर पे, और एवरेज जो टाइम लगता है क्लियर करने के लिए वो 216 घंटे लगते हैं, जबकि इंडिया में ये $336 हैं और 85 आवर्स में वो क्लियर हो जाता है. कोरिया में 7 घंटे में कंटेनर क्लियर हो जाता है, उनकी कॉस्ट $342 है.
ایکسپورٹ پہ جب ہم آتے ہیں تو اگر ہم $400 میں ایک 20 فٹ کنٹینر کلیئر کرتے ہیں تو کوریا میں وہ کاسٹ $196 ہے. ہمارے پاس 113 گھنٹے لگتے ہیں تو وہاں پہ 14 گھنٹے لگتے ہیں. تو آئی تھنک یہ کمپیریزن اس بات کی انڈیکیشن آپ کو دے رہا ہے کہ ہماری جو کاسٹ ہے وہ ریجنلی بھی زیادہ ہے, انٹرنیشنلی بھی زیادہ ہے, اور وہ ٹریڈ کو ہیمپر کرتی ہے, جبکہ ہماری زیادہ تر جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں وہ اتنی ہائی ویلیو نہیں ہوتی اور اس میں $200 کا مارجن اچھا خاصا ہوتا ہے ٹریڈرز کے لیے. کمنگ ٹو دا کانسیپٹ کہ جی سنگل ونڈو ہے کیا چیز, تو اس وقت جو انوائرمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ٹریڈر کو انفارمیشن آن پیپر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو دینی پڑتی ہیں, شپنگ ایجنٹس کو دینی پڑتی ہے, بینکس کو, پورٹ اتھارٹیز کو. جب سنگل ونڈو آ جاتا ہے تو وہ اس سینیریو میں یہ ہوتا ہے کہ ایک الیکٹرانک پلیٹ فارم ہوتا ہے, اس پلیٹ فارم کے تھرو تمام انفارمیشن جو ہے وہ ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے پاس, اور ایک انفارمیشن اگر آپ ایک دفعہ دیتے ہیں تو آپ کو دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی جو فارمل وہ ہے ڈیفینیشن ہے وہ یونائٹڈ نیشن نے یہ دی ہے کہ سنگل ونڈو از اے فیسلٹی دیٹ الاؤز پارٹیز involved in trade and transport to lodge standardized information and documents with a single entry point to fulfill all imports, export, and transit related regulatory requirements. If information is electronic, then individual and data elements should only be submitted once. یہ اس کی ایک آفیشیل ڈیفینیشن ہے جس کو ہم آگے امپلیمنٹ کرتے ہوئے فالو کر رہے ہیں. جو اس کے فائدے ہیں وہ گورنمنٹ کے لیے ہے کہ جی آپ کی کمپلائنس بہتر ہو جاتی ہے, کنٹرولز بہتر ہو جاتا ہے, اور آپ کا جو ریونیو ایلڈ ہے وہ فیئر ہو جاتا ہے, جسٹ ہو جاتا ہے. جبکہ ٹریڈرز کے لیے بینیفٹ ہیں کہ ان کی جو کاسٹ آف کمپلائنس ہے وہ کم ہو جاتی ہے, کلیئرنسز تیز ہو جاتی ہیں, ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کا سامان کہاں پہ رکا ہوا ہے, کیوں رکا ہوا ہے. اور جو گورنمنٹ آفیشلز ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ رولز اور ریگولیشن کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے چیزوں کو روکیں یا کوئی ہراسمنٹ پہ لائیں. نیکسٹ. اچھا, اس کی امپلیمنٹیشن ایک کمپلیکس پروسیس ہے, اس میں کافی سارے اسٹیپس ہیں جو کہ ٹیکنیکل ہیں, اس میں لا بھی ہے, آئی ٹی بھی ہے, چینج مینجمنٹ بھی ہے, بزنس پروسیس انجینئرنگ بھی ہے. تو یہ تقریباً 10 اسٹیپس ہیں جس میں یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. نیکسٹ. پاکستان کسٹمز کو گورنمنٹ نے لیڈ ایجنسی بنایا تھا نومبر 2017 میں سنگل ونڈو کے پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اور یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ آلریڈی ہم نے ویباک کو بھی امپلیمنٹ کیا تھا جو ٹریڈ کو آئی تھنک کافی حد تک فیسیلیٹیٹ کر چکا ہے, اور تقریباً 11 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس انٹرا میں ہم انٹیگریٹ کر چکے تھے. تو 2017 نومبر میں پروگرام مینجمنٹ آفس FBR میں اسٹیبلش کیا جس کو یہ کام دیا گیا ہے کہ سنگل ونڈوز امپلیمنٹ کرے پاکستان میں. اور اس کا جو اسٹرکچر تھا وہ یہ تھا کہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی تھی ایٹ ہائیسٹ لیول جس میں FPCCI کی پریزیڈنٹ بھی ممبر تھے اور ریلیونٹ فیڈرل سیکرٹریز بھی تھے, اور کسٹم سائٹ پہ ایک پروجیکٹ مینجمنٹ آفس تھا جو کہ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ہیلپ لے رہا تھا اور پبلک سیکٹر سے بھی, اور ان کے ساتھ ڈیولپمنٹ ٹیم کے لوگ بھی گریجولی آتے گئے ہیں. نیکسٹ. جو مائل سٹونز ہم نے اچیو کیے ہیں اس میں ایک فاؤنڈیشن ورک کیا گیا ڈفرینٹ ڈونرز کے ساتھ, جس میں IFC شامل ہے, ورلڈ بینک کا, USAID ہے, ADB ہے, اور اس میں ہم نے ڈفرینٹ رپورٹیں بنائیں جو کہ سنگل ونڈو کے ڈیزائن میں کام آتی ہیں. نیکسٹ. اس کا جو ایکٹ ہے وہ اپریل 2021 میں گورنمنٹ نے پاس کر دیا ہے, اور اس وقت جو ان کی نوٹیفیکیشنز ہیں وہ ECC نے اپروو کر دی ہیں, اور انشاءاللہ کیبنٹ سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگلے ہفتے میں وہ بھی اپروو ہو جائیں. اس کا جو بزنس ماڈل ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح میاں جو نثار صاحب نے بات کی کہ جی یہ چلے گا کیسے, تو سسٹینیبلٹی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ کے پروجیکٹس اگر کھڑے ہوں تو وہ کنٹینیوسلی چلیں, وہ فیل نہ ہو. تو یہ ایک بزنس ماڈل ہے جس میں گورننس ماڈل ہے, اس میں گورننگ کونسل بنائی گئی ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر کے بھی لوگ ہیں, پبلک سیکٹر کے بھی جو ریلیونٹ سیکٹریز ہیں اور منسٹر ہیں, اور کسٹم نے ایک الگ سے کمپنی اسٹیبلش کر ڈالی ہے جو کہ اس کی امپلیمنٹیشن کر رہی ہے, اور اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کی ایڈوائزری کمیٹی کا بھی ایک میجر رول ہے. نیکسٹ. ہمارے جو پروگرام کے فیچرز ہیں کہ کیا کیا ہم کر رہے ہیں, تو اس میں ایک ہے کہ جو آپ کی رجسٹریشن ہے بزنس کمیونٹی کی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس, تو اس وقت آپ الگ الگ رجسٹریشن کرا رہے ہوتے ہیں.
سنگل ونڈو کے پلیٹ فارم پہ ایک ہی دفعہ رجسٹریشن ہوگی اور وہ تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس یوز کریں گے. اس کے علاوہ جو الیکٹرانک پیمنٹ ہے تو وہ ہم لے کے آ رہے ہیں کمپلیٹلی. اس میں کوئی مینول پیمنٹ نہیں ہوگی اور وہ پیمنٹ صرف گورنمنٹ کو نہیں ہو سکے گی بلکہ جو بزنس ٹو بزنس پیمنٹس ہیں وہ بھی یہ پلیٹ فارم ہینڈل کرے گا. اس کے علاوہ جو 74 انٹیٹیز میں 32 ایسے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا میجر رول ہے کراس بارڈر ٹریڈ میں, جس میں کسٹمز کے علاوہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن ہے, اینیمل کوارنٹین ہے, PSQCA ہے, ڈریپ ہے. تو ان کی ہم نہ صرف یہ کہ سمپلیفیکیشن کر رہے ہیں بلکہ ان کی جو بیک اینڈ آٹومیشن ہے, ان کی جو کمپیوٹر کی چیزیں ہیں وہ بھی ہم اس پروگرام میں کور کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ICT کمپنی ہے وہ اس پروگرام کو دیکھے گی بھی, اس کو ایکسپینڈ بھی کرے گی اور سسٹینیبل بیسس پہ اس کو چلائے گی بھی. ہمارا جو یہ پروگرام ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو ہم انیبل کریں گے کہ وہ اپنی ویلیو ایڈڈ سروسز پرووائڈ کر سکیں ہمارے پلیٹ فارم پہ. فار ایگزامپل اگر کوئی لاجسٹک کی لینا چاہتا ہے تو وہ کوئی بھی اچھی شپنگ لائن کو پک کر سکے جو اس کو کمپیٹیٹیو ریٹس دے سکے. اس طرح کے ایک پلیٹ فارم گورنمنٹ کے لیول پہ اویلیبل ہو جس میں لوگ سرٹیفائڈ ہوں اور وہ اس کے اوپر لوگ ریلائی کر سکیں. فائنلی یہ کہ ایک آٹومیٹڈ نیشنل سنگل ای لاجسٹک پلیٹ فارم کھڑا کرنا ہے جس میں جتنی بھی 75 ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں یہ اس کے اوپر آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. جو اس کا ایک امپورٹنٹ فیچر ہے اور وہ ہے پورٹ کمیونٹی سسٹم. یہ ہمیں پتہ چلا تھا ٹائم ریلیز اسٹڈی کرتے ہوئے کہ جب پورٹ پہ آپ کا سامان آتا ہے یا جاتا ہے تو اس میں اچھی خاصی کاسٹ اور ٹائم لگ جاتا ہے بیکاز پورٹ کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں لنک نہیں ہیں, انٹیگریٹڈ نہیں ہے. اس میں ٹرمینل آپریٹرز ہیں, اس میں شپنگ لائنز ہیں, فریٹ فارورڈرز ہیں, کسٹمز ہیں, باقی جو ڈپارٹمنٹس پورٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو پورٹ کمیونٹی سسٹم میں ہم ان سب کو لنک کر کے اور اس کو الیکٹرانکلی اویلیبل کر رہے ہیں. نیکسٹ. اس کے علاوہ جو رسک مینجمنٹ سسٹم ہے تو کسٹم کا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ریڈ چینل ہے, گرین چینل ہے, یلو چینل ہے. اور گرین چینل کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں آپ کی سیلف اسسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے پاس یہ سسٹم اویلیبل نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر ANF ہے تو وہ مینولی چیزوں کو روکتا ہے, یا DPP ہے تو وہ بھی پورٹ کے اوپر انسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارے پروگرام کا یہ فیچر ہے کہ انٹیگریٹڈ رسک مینجمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں جس میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس پورٹ کے اوپر آپ کے کارگو کو روکتے ہیں اور ایگزامن کرتے ہیں وہ ایک ہی دفعہ اس کو رسک مینجمنٹ کے تھرو یا تو گرین چینل میں گزاریں یا ریڈ چینل میں. نیکسٹ. اور دوسری ایک جو انسپیکشن ہو رہی ہیں وہ ایک دفعہ ہو, وہ بار بار نہ ہو کہ ایک کنٹینر 3 دفعہ کھل رہا ہے, 4 دفعہ کھل رہا ہے. تو جتنے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اگر انہیں کوئی ایگزامن کرنا ہے تو ایک دفعہ دیکھ سکیں. نیکسٹ. جو BPR ہم نے کیا ہے بزنس پروسیس انجینئرنگ وہ بڑی ایک امپورٹنٹ وہ ہے مشکل کام ہے جس میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے جو نمبر آف ڈاکومنٹس ہیں اس کو آپ ختم کریں, جو ڈاکومنٹس ہیں اس کو آپ الیکٹرانک کریں اور انفارمیشن کو آپ اسٹرکچر طریقے سے لیں. تو اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جب ہماری انٹریکشن ہوئی ہے تو ہم نے ایک لسٹ بنائی ہے کہ فار ایگزامپل ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے 13 جو پروسیسز تھے وہ انجینئر ہوئے ہیں, 5 اس میں جو ڈاکومنٹری تھے وہ الیکٹرانک ویریفیکیشن کے ساتھ ریپلیس ہو گئے ہیں. اس طریقے سے یہ کچھ ڈاکومنٹس ختم ہوئے ہیں. اور اگر آپ اسٹیٹ بینک کو دیکھیں تو 2 ڈاکومنٹ ختم ہوئے ہیں جس کی ڈیٹیل میں آگے آپ کو دوں گا. نیکسٹ. امپورٹ اور ایکسپورٹ فارمز آپ کو میرے خیال میں FPCI کو بہتر پتا ہوگا کہ آپ کی جو امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس میں جب تک آپ کے پاس یہ فارمز نہ ہوں آپ کسٹمز کے پاس اپنی گڈز ڈکلیریشن فائل نہیں کر سکتے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فزیکل موومنٹ کارگو کی رک جاتی ہے. تو اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے ہم نے آئی فارم ای فارم کو ایلیمنیٹ کیا ہے. تقریباً یہ 1.6 ملین ڈاکومنٹس ہیں سال کے, اور ایک ڈاکومنٹ کو ایشو کراتے ہوئے تقریباً آن ایوریج 2.2 ڈیز لگتے ہیں. اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ جی جو گڈس کی کلیئرنسز ہیں وہ اب بینکنگ چینل اور یہ جو ٹرانزیکشن سے ڈیٹیچ ہو گئی ہے اس پرٹیکولر انیشیٹو کے تھرو. نیکسٹ. اس کا جو نیکسٹ سلائڈ کر دیں. اس کا جو فائدہ ہے یہ کہ تقریباً جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ کافی ڈراپ ہو جائے گی اور جو کارگو کلیئرنس کا پروسیس ہے وہ اسموتھ ہو جائے گا, اسپیشلی SME سیکٹر کے لیے جن کی کارگو جو کارپوریٹ بزنسز ہیں ان کے تو بینک سے اچھے ریلیشن شپ ہوتے ہیں لیکن SMEs کی اتنی کارگو نہیں ہوتی, اتنے کنٹینرز نہیں ہوتے, تو نارملی بینکس ان کو اتنے فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے ہیں. تو جب یہ آئی فارم ای فارم ختم ہو جائے گا تو ان کو یہ فیسیلیٹیشن مل جائے گی کہ کارگو ان کا جلدی کلیئر ہوگا. نیکسٹ.
जो इमीडिएटली हम लॉन्च करने जा रहे हैं वो PSW का सब्सक्रिप्शन सिस्टम है. ये एंड टू एंड ऑटोमेटेड है. इसमें हमने इंटीग्रेशन की है EDI के थ्रू नादरा के साथ. पाकिस्तान मोबाइल डेटाबेस है, FBR का डेटाबेस है, और इसमें रिस्क बेस्ड हम जो पोस्ट इशुएंस चेक्स हैं वो ला रहे हैं. नेक्स्ट. और इसका ये तकरीबन जो VBOC में इस वक्त आप रजिस्ट्रेशन करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, लाइसेंस लेने के लिए कि आप काम ये कर सकें, तो उसमें तकरीबन 22 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और उसमें 10 दिन लगते हैं प्रोसेसिंग के लिए. इस पर्टिकुलर केस में ये है कि तकरीबन कोई 500 रुपए का टोटल खर्चा आ रहा है उस पर, और कॉन्टैक्ट लेस है, KYC बेस्ड है, और इसमें जो रजिस्ट्रेशन आप कर लेते हैं तो ना सिर्फ कस्टमर्स को यूज कर सकते हैं, जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इसको यूज करेंगे. नेक्स्ट. ये इसकी वीडियो है जी, आप देखें. जो सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस है उसमें अगर आप देखेंगे कि सिर्फ CNIC आपका चाहिए और आपका मोबाइल नंबर चाहिए, उसके बेसिस पे बाकी जो डेटा है वो FBR से, SECP से, नादरा से सिस्टम खुद उठाता है. उसके बेसिस पे वेरिफिकेशन करके वो सेम डे आपको VBOC की, कस्टम्स की, PSW की यूजर ID प्रोवाइड कर देता है. अच्छा, जो सिंगल विंडो सिस्टम हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो इसमें कोर के ऊपर VBOC है, और उसके आगे पर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो ऐसा हम जो 74 हैं उसको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं. पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम में ये जितने भी लॉजिस्टिक साइड के लोग हैं वो सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लैंड बॉर्डर्स पे कवर हो जाएंगे, और अल्टीमेटली ये होगा कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी नेशनल सिंगल विंडो, रीजनल सिंगल विंडो या ग्लोबल सिंगल विंडो के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, जिसका आउटकम ये होगा कि जो एक्सपोर्ट्स हैं और जो आपकी ट्रेड है वो तकरीबन 23 to 37% उसमें जंप आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरवेंशन. और साल के तकरीबन $500 मिलियन की सेविंग हो सकती है इकोनॉमिक ऑपरेटर्स को इस तरह के सिस्टम लाने पे, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ही बढ़ाएगी, और जो हमारी रैंकिंग है ग्लोबल लेवल पे उसको बड़ा अच्छा कर देगी. ये जो हमने एक प्रोग्राम बनाया है तो एक ये टेम्पलेट हो सकता है पब्लिक सेक्टर में डिजिटाइजेशन के हवाले से. तो जी दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड. आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो विल बी वेरी ग्लैड टू आंसर दैट. जी, थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी. मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब और प्रेसिडेंट साहब कुछ इसमें आप ऐड करना चाह रहे थे, कुछ चीजें चाहिए या क्या है? मैं ये कह रहा था ये प्रेजेंटेशन जो है ये हम इनसे ले लेते हैं, अपनी मेंबर बॉडीज को भेजते हैं, फिर अपनी एक मीटिंग करते हैं, फिर इनके साथ एक और मीटिंग करते हैं, ताकि पता चले कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारा क्या है, कहाँ कोई ऐसी बॉटल नेक है या कोई चीज़ कंफ्यूजन वाली, तो उसको इसलिए हम ये ले लेते हैं, फिर हम भेजते हैं लोगों को, फिर एक अपनी मीटिंग करने के बाद फिर एक मीटिंग इससे दोबारा करते हैं. मेरा ओपिनियन था. जी, जूम पे या हॉल में हम सवालात लेने का सिलसिला शुरू करेंगे, तो जो दोस्त जूम पे करना चाहते हैं हैंड रेज कर देंगे, तो फिर हम उसको 1 by 1 लेते जाएंगे. 2 चीजों की रिक्वेस्ट होगी, मेहरबानी करके अगर एक सवाल हो जाए तो सेम चीज की रेपिटेशन ना करें, और दूसरी हमारी रिक्वेस्ट ये होगी कि रेपिटेशन के अलावा ब्रीफ रखें उसको, ताकि ज्यादा लोगों को मौका मिल सके. तो पहले हॉल से अगर कोई है तो, नहीं तो हम जूम से शुरू करते हैं. जी, या भाई आप प्लीज.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम याहिया है और मैं कस्टम एजेंट हूँ। मुझे 2-3 सवालात हैं, जो मैं कुछ अभी 2-3 सवालात कर लूँगा, बाद में भी कुछ करता रहूँगा बीच में। सबसे पहले तो जिस तरीके से इन्होंने PSW एक्ट प्रिपेयर करके और पार्लियामेंट से अप्रूव करा लिया हुआ है, उसी तरीके से क्या इम्पोर्ट पॉलिसी, जो ट्रेड पॉलिसी हमारे पास इस वक्त मौजूद है, मौजूदा ट्रेड पॉलिसी जो है वो इसमें रहेगी या उसमें भी कुछ अमेंडमेंट आएगी, और उसमें अमेंडमेंट भी आना बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों में हमारे पास एक पेपरलेस एनवायरनमेंट, हमने सुना था कि पेपरलेस एनवायरनमेंट जो है वो पैक्स की सूरत में आ रहा है, जो कभी भी कस्टम ने इसको पेपरलेस नहीं रहने दिया। वेरी सॉरी टू से, ये हमेशा इसके ऊपर फाइलें खुलती रहीं। उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट में भी जो पैक्स इस वक्त चल रहा है, इसमें भी पेपरलेस एनवायरनमेंट का हमने कभी सोचा ही नहीं है कि पेपरलेस एनवायरनमेंट मौजूद है, नहीं मिला हमें कभी भी आज तक। क्या ये PSW के अंदर ये सब चीजें जो मैंने कही हैं, इसका क्या इम्प्लीमेंट रहेगी? उसकी कोई कमिटमेंट्स, कोई चीज ऐसी होगी जिसको हम किसी भी ऑफिसर को दिखा के इस कमिटमेंट्स को पूरा कर सकें? ये मेरा सवाल है। जी, मैं जवाब दे दूं शबीर साहब? जी इमरान साहब, प्लीज गो अहेड सर, थैंक यू। हमने जी पर्टिनेंट सवाल पूछे हैं। एक तो ये कि इंपोर्ट पॉलिसी के हवाले से एक चीज मैं आपको, मतलब जो डिटेल में प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं आपको मैंने नहीं बताई कि हम 12 डिजिट पे जा रहे हैं सिंगल विंडो में। 8 डिजिट पे इस वक्त हमारा सिस्टम है, उसको हम 12 डिजिट पे लेके जा रहे हैं। और उस हवाले से जो इंपोर्ट पॉलिसी और एक्सपोर्ट पॉलिसी का हमने रिव्यू किया था, और उसमें काफी सारे गैप्स नजर आए थे हमें, और वो गैप्स हमने आइडेंटिफाई करके मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स को बता दिए हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने उस पर कोई समरी भी मूव की है। तो होपफुली वो जो आप बात कर रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएगी। दूसरी बात ये कि एक फीचर है जिसको ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल हम कह रहे हैं। वो ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल ये है कि जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से रेगुलेटरी मेजर्स हैं, भले वो इंपोर्ट पॉलिसी की हैं, एक्सपोर्ट पॉलिसी की हैं, या किसी और डिपार्टमेंट ने वो एक्चुअली अडॉप्ट की हुई हैं, भले वो कहीं पे रिफ्लेक्टेड नहीं है, तो वो हम इंटीग्रेटेड टैरिफ मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू कैप्चर करेंगे, और वो ट्रेड को अवेलेबल होगी और वो बाइंडिंग होगी। जो इंफॉर्मेशन PSW पे नहीं होगी, उस डिपार्टमेंट के लिए ये लॉ जो पाकिस्तान सिंगल विंडो एक्ट आ गया है, तो उसमें ये चीज बड़ी क्लियरली वाजे कर दी गई है कि अगर आपने क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के हवाले से कोई चेंज करनी है तो PSW के प्लेटफॉर्म पे आएगी, तब वो इम्प्लीमेंट होगी। तो एक ये बाइंडिंग अब होगी। दूसरी बात जो आपने की कि पेपरलेस एनवायरनमेंट नहीं है, वी एग्री विद दैट कि पेपरलेस नहीं है। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन का देखेंगे तो जो VBOC में चीज नहीं थी वो हम यहाँ पे लेके आ गए। वहां पे 22 डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे, यहाँ पे 0 डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। तो ये एक प्रोसेस है एवोल्यूशन का। अगर आप देखेंगे पैक्स के आने से पहले आपने भी शायद पोर्ट पे काम किया हो, और मैं भी वहां पे रहा हूँ, तो बिल ऑफ एंट्री हुआ करती थी, उसमें 32 सिग्नेचर होते थे। अब VBOC आ गया तो उसमें 32 सिग्नेचर नहीं, और ग्रीन चैनल भी आ गया है। PSW को आने दें, इंशाल्लाह ये जो आपका गिला है बहुत सारे पेपर वर्क का, ये इंशाल्लाह जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो ये खत्म होगा आपका गिला। इस सिस्टम के आने के बाद ये जो क्लियरेंस कास्ट है वो कितनी होगी? और दूसरा ये है कि कंटेनर्स क्लियर करने में कितना टाइम लगेगा? जो मैंने आपको कॉस्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट की है, ये रिसीटेड कॉस्ट है। ये वो कॉस्ट है जो ऑन द टेबल ट्रेड पे कर रहा होता है। तो हमारा टारगेट है कि ये कॉस्ट एटलीस्ट 50% हम डाउन लाएं, और जो टाइम है वो इस वक्त डेज में है, हम उसको आवर्स में लेके आना चाहते हैं, घंटों के अंदर। अगर इस तरह का निज़ाम हो तो बहुत अच्छा है कि वक्त की बचत भी होगी, माल रॉ मटेरियल भी हमें टाइम पे मिलेंगे। ये तो अगर निज़ाम आ जाए इसमें तो बहुत 50% आपका रिड्यूस भी होगा और आवर्स में चला जाएगी, तो बहुत अच्छा निज़ाम है। अल्लाह करे ये कामयाब हो। थैंक यू। जी जूम पे जाना चाहेंगे हम लोग। यहाँ पे पहले कोई हैं हमारे साथी फेयरमाउंट के नाम से,
तो अपना इंट्रोडक्शन भी कराएं और ब्रीफली सर मेहरबानी करके आप क्वेश्चन. आप काइंडली अनम्यूट करेंगे तो क्वेश्चन हो सकेगा. जी, नेक्स्ट पे चलते हैं. रियाज साहब हैं. रियाज साहब कुछ सवाल करना चाहते हैं. मोहम्मद रियाज साहब. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद रियाज है एंड आई एम इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर वर्किंग इन विद एक्सपोर्ट कंपनी. सर मेरे दो क्वेश्चन है इसमें. सर एक ये है कि जितने भी हमारे फूड आइटम जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं पाकिस्तान से, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन जो फाइटो सर्टिफिकेट इशू कर रहा है वो मैनुअल सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, और इस तरह सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है या फॉर्म ए है जो डीपीपी जो टीडैप इशू करता है वो भी मैनुअल इशू हो रहा है. आया कि इस सिस्टम के आने के बाद ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन इशू होंगे या वही मैनुअल डॉक्यूमेंट होंगे? नंबर 1. सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि हमेशा से जब भी कोई नया सिस्टम आता है तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट उसकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करते हैं. मैं उसकी एग्जांपल दूंगा कि जैसे स्टेट बैंक ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज लगाए हैं, तो हर बैंक ने स्टेट बैंक की पेनल्टी से बचने के लिए अपने लॉज जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर सफ़र कर रहा है. बैंक रोज़ाना नई से नई कोई चीज़ इंप्लीमेंट कर देते हैं जिसका स्टेट बैंक की रेगुलेशन से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता, और इसमें जो एक्सपोर्टर सफ़र कर रहा होता है और पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है. जी थैंक यू सो मच. रियाज साहब थैंक यू वेरी मच जी. एक तो जो आप बात कर रहे हैं, यस डीपीपी हमारा सबसे पहला टारगेट है सिंगल विंडो का कि जितनी भी वो सर्टिफिकेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे दें वो ऑनलाइन हो, और जो टाइम लाइन्स उसकी हैं कि 15 जून से ये सब्सक्रिप्शन इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको लाइव कर दें फॉर एवरीबॉडी, और 10 अगस्त हमारा टारगेट है आई फॉर्म ई फॉर्म के एलिमिनेशन के हवाले से. उसके बाद फिर डीपीपी को हम ला रहे हैं, उसके बाद फिर AQD और बाकी डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं. तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये पेपर बेस्ड होगा या इलेक्ट्रॉनिक होगा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक होगा, पेपर बेस्ड नहीं होगा. और दूसरी बात जो बैंक्स की आपने की, ये ऑब्जर्वेशन हमारी भी थी कि हर बैंक अपनी अलग एक लेके आया हुआ है सिस्टम जिसके थ्रू वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से अपने जो पॉलिसीज है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है. और हमने स्टेट बैंक से ये रिक्वेस्ट भी की थी कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए फॉर ऑल द बैंक्स. तो अब जो ये आई फॉर्म और ई फॉर्म एलिमिनेट हो गए हैं तो बैंक्स का रोल बहुत मिनिमाइज हो गया है. आप अपना कार्गो GD फाइल कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, और बैंक का ये काम है कि पोस्ट क्लियरेंस फेज पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, फॉर एग्जांपल कोई एक्सपोर्ट कर गया और रेमिटेंसेस टाइम पे पाकिस्तान लेके नहीं आया, तो उसके हवाले से वो उसको कॉशन कर सकते हैं, उसको ब्लॉक कर सकते हैं. लेकिन अपफ्रंट लोगों से ये डिमांड करना ज्यादती इसलिए है कि 98% लोग कंप्लायंट हैं और उनसे कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप आई फॉर्म और ई फॉर्म मांगे. तो उस पर स्टेट बैंक ने भी एग्री किया हुआ है और उन्होंने बैंक्स को एग्री करवा दिया इस बात पे. जी थैंक यू सर. ओवर टू लाहौर रीजनल ऑफिस, हमारा लाहौर प्लीज. मियां मोहम्मद अली साहब, वहां पे साथियों के अगर कोई सवाल आते हैं तो प्लीज हेल्प करें. वेलकम मियां मोहम्मद अली साहब. जी थैंक यू जनाब प्रेसिडेंट नासिर साहब और जनाब शबीर साहब. मैं समझता हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन देखी है हमने, ये तवक्को से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप है, और जिस महीने से तैयार की गई है और जितनी ये प्रेजेंटेशन थी, इसका तकाजा है कि ये एक सीरीज़ ऑफ अवेयरनेस इसके ऊपर जानी चाहिए. और मैं मुबारकबाद देता हूँ शबीर साहब आपको भी और प्रेसिडेंट साहब को, अंजम साहब को भी, जिन्होंने ये अरेंज की. जैसा कि नासिर साहब ने कहा है, प्रेसिडेंट साहब ने, जो हमारे पंजाब में जो एसोसिएशंस हैं और जो चैम्बर्स हैं, जब ये हमारे पास हार्ड कापी आ जाएगी और सॉफ्ट कापी आ जाएगी, उनसे शेयर करने के बाद हम फुली जो है आपको फीडबैक देंगे. फ़िलहाल तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ. छोटा सा 1 2 3 क्वेश्चन
जो हमारे यहाँ पे बैठे हैं दोस्त ये करना चाहेंगे। मेरी तरफ से सबसे पहले ये था कि जो एग्जामिनेशन है वो या तो आपकी पोर्ट पे होनी है, और दूसरा ऑप्शन होता है वेयर हाउसिंग में एग्जामिनेशन करना। अगर डायरेक्ट शिपमेंट आपकी वेयर हाउसिंग पहुँच गई है तो वेयर हाउसिंग पे इंस्पेक्शन के लिए आपकी जो ये सिंगल विंडो सिस्टम है इसमें ऑप्शन रखी है। और किस तरह रखी है, क्वेश्चन पहले लाहौर से 3-4 ले लें, उसके बाद फिर इकट्ठे आप जवाब दे सकते हैं। और एक बार दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद। ये जो पाकिस्तान सिंगल विंडो है, इसको विंडो की बजाय गेट कह दे, सिंगल गेट कह दे तो ये बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक गेट बन चुका है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अरशद भट्टी साहब। जी शुक्रिया मियाँ साहब। शबीर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। जैसा कि मियाँ साहब ने फरमाया कि ये तवक्को से ज़्यादा एक स्टेप है गवर्नमेंट का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड के हवाले से। मेरे इसमें कुछ एक दो सवाल हैं जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक ये तो पूछना नहीं बनता, EIF का जो है ये तो 10 अगस्त को एलिमिनेट हो जाएगा, ये एक बहुत अच्छी आपका डिसीजन है। दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सिंगल विंडो के ऊपर डाटा अवेलेबल होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, ताकि हर इंपोर्टर जो है या एक्सपोर्टर है वो ये देख सके कि क्या वहां पे असेसमेंट में या उसके साथ जो भी ड्यूटी टैक्सेस में या किसी के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही। दूसरा मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, अभी मियाँ साहब ने किया, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारी एक्सपोर्ट की एग्जामिनेशंस होती हैं, लॉ के अंदर तो परमिशन है कि अपने फैक्ट्री के वेयर हाउस में हम ले सकते हैं फैसिलिटी कस्टम डिपार्टमेंट से। क्या इस सिंगल विंडो के थ्रू हम वहीं पे अप्लाई करेंगे या पुराने सिस्टम के थ्रू लेटर हेड पे रिक्वेस्ट देंगे जी हमारी शिपमेंट रेडी है? नंबर 2, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो शिपमेंट्स यहाँ पे हमारी इंपोर्ट की हैं वो हमारी वहां पे रोकने की बजाय जो वेयर हाउसिंग वाली इंडस्ट्री की शिपमेंट्स होती हैं, कुछ इंडस्ट्री ने वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ली होती है, तो उनको रोकने की बजाय क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिंगल विंडो की मॉनिटरिंग के थ्रू डायरेक्ट फैक्ट्री के वेयर हाउस में जाएं और वहीं पे उनका एग्जामिन हो, ताकि आपकी जो हमारे पोर्ट के हालात हैं पिछले चंद सालों से चल रहे हैं वो रिड्यूस हो सकें, उनकी जो बैकलॉग की आए रोज एक होती है इशू खड़ा हो जाता है वो भी कम से कम हो सके। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है जी, क्या हमारे जो शिपमेंट्स हैं जो इंपोर्ट से रिलेटेड हैं या एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, हमने 45 डिपार्टमेंट्स तो इसमें लिंक कर दिए हैं, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, आई अप्रिशिएट फॉर दिस स्टेप। लेकिन मेरा इसमें क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जांपल मेरा ANF को शिपमेंट मार्क होता है, PSQCA को होता है, या कस्टम को असेसमेंट के लिए एग्जाम, कितने घंटे तक उसकी वैलिडिटी होगी? क्या इसमें ऐसा होगा कि एक डिपार्टमेंट अगर उसको 24 आवर रिप्लाई नहीं करता तो क्या सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली स्किप करके कैरी फॉरवर्ड करेगा उस शिपमेंट को, ताकि ट्रेडर को नुकसान कम से कम हो, बजाय इसके कि अगर वो इदारा जो है वो 24 आवर में रिप्लाई नहीं करता तो वो शिपमेंट वहीं पे उसी स्टेज पे रुकी रहे। थैंक यू वेरी मच जी। ओवर टू मैडम शमीम साहब, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर आप जवाब दे देंगे जी। मैडम ऑन कर ले। मेरा क्वेश्चन जो है वो इंपोर्ट के हवाले से है, और जो मैं अभी तक समझी हूँ आपका इस निज़ाम को, कि इस वक्त जो हम इंटरफेस इस्तेमाल कर रहे हैं VBOK, उसकी जगह पे ये PSW रिप्लेस कर रहा है। और आपने अभी अपनी प्रेजेंटेशन में कहा कि एक इंफॉर्मेशन एक दफ़ा डल जाएगी तो वो एक बेस बन जाएगी जो है, तो VBOK में भी हमारी यही उम्मीद थी जब हम गए थे कि एक इंफॉर्मेशन जब एक दफ़ा डल गई तो वो रेफरेंस बन गई। लेकिन पिछले 20 सालों में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि वो चीज़ ऐसा नहीं होता। हर दफ़ा जो है डिबेट्स होती हैं, बहस होती हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर, और पिछले रेफरेंसेस मैनुअली लगाने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट मैनुअली लगाने पड़ते हैं, तब कहीं जाके जो है उसको जो है वो थ्रू होता है। तो क्या इस नए सिस्टम में, निज़ाम में कोई ऑप्शन है कि एक प्रोडक्ट मसलन अगर 10 साल से आ रही है और उसका एक रेफरेंस वैल्यू का बना हुआ है या उसका क्लासिफिकेशन का बना हुआ है, तो उसको एज ए सपोर्ट लिया जाएगा जो है? थैंक यू शबीर साहब। आपको मुबारकबाद देता हूँ शबीर साहब, इसके लिए कि ये बड़ी देर बाद हुआ है कि जूम के ऊपर आपका बिल्कुल जो थी कैपेसिटी फुल हो गई है, और इसके बावजूद हमें फ़ोन आ रही है कैपेसिटी नहीं है। तो ये इस तरह के जो आपके ये सेमिनार हैं
जब आप जूम पे जाएं तो कैपेसिटी 300 की लिया करें, 100 फुल हो गया कैपेसिटी, ऑल ओवर पाकिस्तान पीपल वाचिंग टू यू, मुबारकबाद हो आपको, थैंक यू। जी सब लोगों की इत्तला के लिए थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा जूम हमारा 3 बजे ही फुल हो गया था, तो फिर हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने अरेंज करा दिया था हमारा कि यूट्यूब के ऊपर हम लोग लिंक हैं इस वक्त ऑनलाइन, और बहुत सारे लोग इस वक्त यूट्यूब पे हमारी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। और एज ऑफ नाउ आई स्पीक अर्लियर, अभी मुझे शेखुपुरा चैम्बर से भी और दूसरे चैम्बर्स आपके पंजाब के सबके फोन आ रहे थे कि वो ये कह रहे हैं कि जी कि हमें उसमें लिंक में नहीं हो पा रहे हैं। तो एक तो ये टेकिंग एन अपॉर्चुनिटी, एक तो हमारी ये रिक्वेस्ट ये होगी कि मुख्तलिफ ट्रेड बॉडीज जो अंजुम साहब ने मुझे बताया कि वो चाहेंगी कि आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम ये करते रहें। और बिफोर आई अगेन रिक्वेस्ट इमरान साहब के क्या जवाबात के लिए एक सवाल मैं भी साथ में ऐड कर दूं कि एक्चुअली ये प्रैक्टिकली लॉन्च कब से कर रहे हैं और क्या ग्रेजुअली लॉन्च का प्रोसीजर होगा या क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो भी जरा एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। देखें, तो जो इंफॉर्मेशन है जो यहाँ प्रेजेंटेशन हमने दी है, इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हुए हैं, और जो दूसरे प्रिंसिपल्स हैं इसके, विजन, मिशन और जो बाकी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। तो अगर साथी उधर पे जाएंगे उसको देखेंगे तो काफ़ी क्लैरिटी उनको मिल जाएगी। दूसरा मैं ये क्लियर कर दूं कि सिंगल विंडो का ये मैंडेट नहीं है कि हम किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के इंटरनल प्रोसेसेस को इंटरवीन करें। हम उनको प्रपोज करते हैं कि जी आपका ये प्रोसेस सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको ऑटोमेट कर लें, आईसीटी यूज कर लें, टेक्नोलॉजी यूज कर लें, लेकिन उनका काम उनके पास रहेगा। डीपीपी का जो मैंडेट है कि वो एक एसपीएस के हवाले से अगर वो कोई सर्टिफिकेशन करते हैं तो वो उनका मैंडेट आगे भी रहेगा। जो सवाल किया गया था कि ब्लू चैनल कि जी क्या एग्जामिनेशन पोर्ट्स पे हो या पोर्ट के बाहर वेयर हाउस पे हो, तो उसका जो हम इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का सोल्यूशन लेके आ रहे हैं एज पर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस। उसमें रेड चैनल, ब्लू चैनल और येलो चैनल और ग्रीन के अलावा एक 4th चैनल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ब्लू चैनल, जिसमें यह होगा कि अगर कोई एलपीसीओ, कोई लाइसेंस परमिट सर्टिफिकेट इशू होना है तो बजाय पोर्ट पे वो कंसाइनमेंट पड़ी रहे, वो पोर्ट से क्लियर हो के प्रोविजनली वेयर हाउस में चली जाए ट्रेडर के, और जब उस पर फाइनल सर्टिफिकेट आ जाए उस डिपार्टमेंट का तो वो क्लियर हो। इसी तरीके से जो एईओ का एक सिस्टम है, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स का, तो वो एक अलग प्रोसेस है जिसमें अगेन आपके प्रेमिसेस के ऊपर सारी एग्जामिनेशंस होती हैं, पोर्ट के ऊपर नहीं होती है। तो दैट इज अ डिफरेंट प्रोग्राम जो कि विद टाइम एफडीआर इम्प्लीमेंट करेगा, वो सिंगल विंडो का हिस्सा नहीं है। जो चीज सिंगल विंडो का हिस्सा बनेगी वो ब्लू चैनल है, जिसमें आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। और उसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्या वैलिडिटी पीरियड क्या रहेगा, कि अगर फॉर एग्जांपल आपने जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए मार्क कर दिया एनएफ को और इंस्पेक्शन के लिए नहीं आ रहे हैं तो क्या टाइम पीरियड होगा। तो अभी बैंक्स में हमने ये किया है कि अगर फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट की कोई कंसाइनमेंट हो रही है और उसमें बैंक प्रोफाइल शेयर नहीं करता 8 घंटे में, तो एक डेडलाइन दी गई है कि उसके अंदर में शेयर करना है, अदरवाइज ये चीज प्रोसेस हो जाएगी। तो जो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उसको डेफिनेटली हम कवर करेंगे कि उनकी जो वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है एग्जामिनेशन की वो रूल हो सके। डेटा की अवेलेबिलिटी, कि आपके पास जो वैल्यूएशन है वो अवेलेबल हो और लोग प्लान कर सकें अपनी इंपोर्ट्स को या एक्सपोर्ट को, भले वो इंडस्ट्री के हवाले से हो, इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो। तो ये इंफॉर्मेशन सिंगल विंडो पे हम अवेलेबल करेंगे जब हम ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल का जो मॉड्यूल है उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। उसमें ये होगा कि आपको पर्टिकुलर कमोडिटी के हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगी कि उस पर रेगुलेशन क्या है, उस पर ड्यूटी टैक्सेस क्या है, उस पर एग्जाम्पशंस क्या हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो किस किस मुल्क में आपको क्या प्रेफरेंशियल एक्सेस अवेलेबल है, ईयू में क्या है, चाइना एफटीए के अंदर क्या है, ये तमाम इंफॉर्मेशन ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल के नीचे सिंगल विंडो पे अवेलेबल होगी।
اور یہ تمام چیزیں ایک ساتھ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں. یہ لیٹ می کلیئرفائی دیٹ کہ جی 74 ڈپارٹمنٹس ایک گو میں سنگل ونڈو پہ نہیں آ رہے ہیں. یہ بگ بینگ کرنا از آلویز رسکی. ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ورک کر رہے ہیں. پہلا یہ سبسکرپشن کا لانچ کر رہے ہیں, پھر یہ آئی فارم ای فارم کا, پھر ڈی پی پی کا, پھر اینول کوارنٹین, پی ایس کیو سی. دسمبر تک ہمارا پلان ہے کہ تقریباً 80% جو ریگولیٹری اس وقت ڈاکومنٹس ایشو ہو رہے ہیں وہ دسمبر 2021 تک ہم سنگل ونڈو پہ لے آئیں. اس کے بعد پھر ٹریڈ انفارمیشن پورٹل ہے, اس کے بعد پھر پورٹ کمیونٹی سسٹم ہے, اور اس طریقے سے یہ 2023 میں پروجیکٹ ختم ہوگا جون میں. تب تک ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ جو جتنی بھی میجر اینٹیز ہیں پبلک سیکٹر سائڈ پہ وہ تمام کی تمام ہم سنگل ونڈو پہ انٹیگریٹ کر سکیں. جو میڈم نے سوال کیا تھا کہ جی انفارمیشن, تو یہ جو میں نے بات کی تھی یہ اس لیے کی تھی کہ رجسٹریشن کرتے ہوئے اگر آپ کوئی ایک انفارمیشن ہمیں دیتے ہیں کہ آپ کی اینٹی فلانی ہے, ان کا یہ انڈین نمبر ہے, یہ پریمیسز ہے, یا آپ نے کوئی پرٹیکولر فیکٹری جو پریمیسز ہے وہ رجسٹر کرا دیا, یا آپ نے ایک پروڈکٹ رجسٹر کرا دیا, جس طرح سیڈ سرٹیفکیشن میں ایک سیڈ رجسٹر ہو گیا, وہ انفارمیشن اویلیبل رہے, بار بار آپ کو انفارمیشن سسٹم میں فیڈ نہ کرنی پڑے, اس کانٹیکسٹ میں ہے. جو جہاں تک سوال ہے ویلیویشن کا اور اس پہ ڈیوٹی ٹیکسز کا, دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. کسٹمز کی جو ماڈرنائزیشن ہے اس کا ایک الگ پروگرام چل رہا ہے, اور اس میں سنگل ونڈو کو جو کمپنی بنائی گئی ہے وہ کسٹمز کو اب سپورٹ کرے گی in much more effective manner than in the past. تو یہ ایک ایڈوانٹیج کسٹمز کو اس سنگل ونڈو کی کمپنی سے ہوگا کہ ان کے جو اپنے پروسیسز ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 2-3 سالوں میں وہ بھی کافی اپ گریڈ ہو جائیں گے بیکاز آف دس پرٹیکولر پروگرام. میاں انجم نثار صاحب اور عمران صاحب اور ان کی ٹیم اور شبیر چورا صاحب, عمران صاحب سے میرا کوشچن ہے کہ یہ جو ویلیویشن کا نظام, جیسا ہم اپریزر کے پاس جاتے ہیں 3 دن لگا لیتے ہیں اپریز کرتے ہوئے آئٹم کا, کیا اس نظام میں بھی کوئی درستگی کریں گے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال, آپ پاکستان میں ایز اے پائلٹ پروجیکٹ آپ چلائیں گے 15 اگست سے, تو کیا آپ پورا پاکستان کے تمام پورٹوں پہ چلائیں گے؟ پرال کا کیا رول ہوگا؟ کیا اس میں نہیں آپ ایک جگہ سے شروع کریں گے؟ میں یہی کوشچن کروں گا. تھینک یو ویری مچ. یہ جو سسٹم ہے یہ پورے پاکستان میں اویلیبل ہوگا. پائلٹ کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل کل ہماری یو اے ٹی ہو جاتی ہے, کسٹمز اور باقی جو ڈپارٹمنٹس ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ٹھیک ہے, تو پبلک کو اویلیبل کرنے سے پہلے آپ اس کو پائلٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایرر ہیں, فلاز ہیں, اس کو آپ ٹھیک کر لیں. نارملی پائلٹنگ میں 10 سے 15 دن لگتے ہیں. تو سبسکرپشن کی جیسے اس وقت اگر ہم پائلٹنگ شروع کرتے ہیں تو 15 جون تک ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. اس کے بعد وہ پورے پاکستان میں اویلیبل ہوگا. ویب بیسڈ ہے, ہمیں کوئی لمیٹیشن نہیں کہ ہم صرف کراچی میں اس کو رکھیں, لاہور میں نہ رکھیں یا خنجراب پہ نہ رکھیں. اٹ ول بی اویلیبل ایوری ویئر. جہاں تک ویلیویشن کا اسپیکٹ ہے, تو اب کسٹمز میں یہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں کوشش یہ ہے کہ جو اپریزر کا رول ہے اس کو منیمائز کیا جائے, اور جو ویلیویشن رولنگ دی گئی ہیں اس کو بجائے اس کے کہ اپریزر لگائے وہ سسٹم لگانا شروع کر دے. تو وہ ایک الگ پروجیکٹ ہے, وہ سنگل ونڈو کا پارٹ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ایک جو پرال کا میں رول پہنچا تھا, یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ جی پرال کے ساتھ کیا ہوگا. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ جو جتنی بھی امپورٹ ایکسپورٹ ریلیٹڈ جتنے بھی میٹرز ہیں یہ پاکستان سنگل ونڈو کمپنی دیکھے, انکلوڈنگ جو کسٹمز کا وی باکس سسٹم ہے وہ کافی پرانا ہو چکا ہے. 2009 میں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے, اور اس کی ٹیکنالوجی بھی اب جو ہے وہ اینڈ آف لائف پہ آ گئی ہے. تو اس کو ہم ریپلیس کریں گے سنگل ونڈو کے اندر, یہ پلان ہمارا ہے. اور وی باک جو ہے وہ فوکس کرے گی, پرال فوکس کرے گی انٹرنل ریونیو کے اوپر. جی تھینک یو ویری. سر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ہلو آواز ہے سر. سر اپنی باری پہ پلیز وداؤٹ پرمیشن پلیز اوائڈ کیجیے, مہربانی. سر پہلے سر اسلام آباد میں کوئی رہ گیا تو نہیں, تو پھر ہم عابد بنیار صاحب نے بات کرنی تھی, پلیز.
अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक हेल्थ केयर डिवाइस मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसमें मेरे 2 सवाल थे। एक तो ये था कि जैसे आपने कहा कि बैंकिंग का जो है इसमें सिस्टम जो है थोड़ा सा बैंकिंग का जो रिड्यूस हो जाएगा, जो भी तरीक़ेकार है, उसमें ये पूछना था कि अगर हमारी इंपोर्ट डॉक्यूमेंट होते हैं इसमें बैंकिंग के ऊपर खासा दारोमदार होता है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स आने हैं वो बैंकिंग के थ्रू आते हैं और उसमें जो ना एक खासा डिले होता है, क्योंकि बैंकिंग चैनल अपना टाइम लेता है, बाद औक़ात एयर शिपमेंट पहले आ जाती है, डॉक्यूमेंट नहीं आते, इसकी ऐसे जो ना काफ़ी डिले होता है। तो इसमें जो पाकिस्तान सिंगल विंडो है, इसमें कोई ऐसी अमेंडमेंट्स आ रही हैं या जो इस अपॉर्चुनिटी है कि जो डॉक्यूमेंट्स का जो है उसमें कोई अमेंडमेंट्स कर रहे हैं या बैंकिंग का जो चैनल है उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं? एक तो मेरा सवाल ये था। दूसरा ये था कि आपने इसमें जिक्र किया कि 74 एजेंसी उसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें आपने इदारे का भी बताया कि हमारा ड्रैप जो है, जो कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है, वो हमारे इसमें डायरेक्ट इसके अंदर है और हमें बाज़ औक़ात बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं अगर ड्रैप से कोई किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन चाहिए हो और उसमें बड़ा टाइम जो है ना कंज्यूम होता है। तो अगर इस सिलसिले इस सिस्टम के थ्रू जो है उसमें क्या ऐसी अमेंडमेंट की गई है कि उसमें जो है ना क्लैरिफिकेशन बर वक्त हमें आ जाए और उसमें जो है ना इम्पोर्टर का जो है ना टाइम जो है ना बच सके और शिपमेंट जो है ना वो क्विकली जो है ना वो क्लियर हो सके? जो आपने बात की कि बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट्स आते हैं, बिलीव वो बिल ऑफ लेडिंग होता है मोस्टली, जिसके थ्रू आप पोर्ट ऑपरेटर के पास जाते हैं और अपना कार्गो क्लेम कर रहे होते हैं। एक तो ये वाला पार्ट है। तो जो पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम है उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक बीएल की बात कर रहे हैं कि जो बीएल है वो शिपिंग कंपनी से इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराए करें और उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा तेज कम कर सकें। इस वक्त जो फोकस बैंक्स पे है वो आई फॉर्म ई फॉर्म के हवाले से है कि वो जो पर्टिकुलर कंडीशन उनकी है वो खत्म हो जाए। बाकी अगर इलेक्ट्रॉनिक बीएल आता है तो आई बिलीव कि आपका जो बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट्स लेना और उसका वेट करना वो थोड़ा सा आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस रिलेशन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर अब्रॉड, कैसे आप आपस में इसको करते हैं, सिक्योर करते हैं एक दूसरे को। तो एक तो ये वाला जो है इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जहां तक इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी और रिस्पांस का है तो एक क्लाइंट जो रजिस्ट्रेशन और उसकी जो रिस्पांस का मैकेनिज्म है पीएसडब्ल्यू के ऊपर, तो आप अपनी जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो आप रेलेवेंट डिपार्टमेंट के पास रेज कर सकते हैं थ्रू ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल। उसमें यह है कि उस पर्टिकुलर आइटम के हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई रॉ मटेरियल मंगाना चाहते हैं जिस पे ड्रैप की कोई रेगुलेशंस हैं, तो वो रेगुलेशंस का प्रोसेस क्या है, उसके जो रेलेवेंट ऑफिसेज हैं उसमें कौन बैठे हैं, क्या उनका नंबर है, उनको आप रीच आउट कर सकते हैं डायरेक्टली एज वेल एज थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ पीएसडब्ल्यू। मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है कि जितना हम ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट करते जाएंगे और इंफॉर्मेशन अवेलेबल करते जाएंगे, उतने ये क्वेश्चंस कम होते जाएंगे और इतनी कंफ्यूजन कम होती जाएगी। जो आइडियल सिनेरियो होगा वो ये होगा कि आप कोई एचएस कोड या डिस्क्रिप्शन सिस्टम पे दें और सिस्टम आपको कंप्लीट डिटेल उसकी दे सके कि इस पे क्या रेगुलेशंस हैं, इस पे क्या ड्यूटीज टैक्सेस हैं, इस पे कितना टाइम लगता है, इसकी वैल्यूएशन कितनी की होती है। ये तमाम इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको इमीडिएटली प्रोवाइड कर सके। तो दिस इज द टारगेट दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स। जी, सैयद तनवीर साहब प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम। My name is Sayyid Tanveer Ahmed and I'm associated with FPCCI regarding the consultant on tax issues. एक दो चीजें अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस देखते हुए वी बॉक का और उसका कि ट्रेड जो है वो बेसिकली इंटरेस्टेड है कि वो टाइम जो है उसमें कम हो जाए, डेफिनेटली, जो कि आप कोशिश भी कर रहे हैं और कुछ आपके टारगेट्स भी हैं। लेकिन क्या 32 डिपार्टमेंट अगर इसी तरह वर्क करेंगे और उनकी अपनी उसी तरह रहेगी तो क्या रिड्यूस होगा? ये आपका इस वक्त का तो डिसीजन ठीक है कि आप सबको जब एक दफा प्लेटफॉर्म पे ले आए, एक दफा उनको इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट कर दें, लेकिन अगर मतलब मैं क्या मिसाल दूं, सबके सामने सब यहाँ इंपोर्ट्स के हवाले से बैठे हुए हैं, चाहे वो ANF है, चाहे वो प्लांट क्वारंटीन है या एनिमल है या दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं या बॉयलर इंस्पेक्टर है या व्हाटएवर, जॉइंट एग्जामिनेशन प्रॉब्ली आप कर रहे हैं,
کہ 10 منٹ کی سلاٹ ہونی چاہیے آدھے گھنٹے کی, جس میں اگر کسی نے دیکھنا ہے تو دیکھ لے. لیکن یہ کہ کوئی آپ کو پاور الٹیمیٹلی ابھی نہیں, جس وقت یہ اسٹیبلش ہو جائے تو لینی چاہیے کہ جو بورڈ ہے پورا وہ بیٹھ کے ان کے انٹرنل پروسیسز کو بھی ٹو دی ایکسٹینٹ آف کسٹمز ان کو امینڈ کر سکے. ان پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. آپ کو مینٹیلٹی کا پتہ ہے, آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے. اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو یہ پاورز, میرا یہ خیال ہے کہ نہیں, انیشلی آپ بہت اچھا ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اینڈ پورا میں نے ایکٹ دیکھا ہے ویری ویل. ان میں یہ پاورز جو ہیں تھوڑی بہت مزید. اور دوسرے یہ کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت جو ریز کر رہے ہیں آپ ریونیوز, وہ گورنمنٹ دے گی یا اسی میں سے شاید وہ ہوں گے ریز, اس میں سے ہونے, لیکن ان کا وہ وی باک والا نہ ہو کہ بلینز آف روپیز ہوئے ہیں اس کو خرچ نہیں کر سکے, اس میں سے کچھ اسپینڈ نہیں کر سکے اور وہ نہیں ہو سکے ڈسپائٹ آل دی اتھارٹی اینڈ رولز. اس کے بارے میں بھی تھوڑا دیکھ لیجیے گا. آئی مسٹ سے کہ آپ نے ڈیفینیٹلی دیکھا ہوگا کہ جسٹ ٹو فار دی نالج آف دوز پارٹیسپینٹ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ تنویر صاحب. پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو چیز ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں وہ ہے رسک مینجمنٹ سسٹم انٹیگریٹڈ ون, جس میں یہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ نے جو اس وقت پورٹ کے اوپر کنسائنمنٹ روکتا ہے اور ایگزامن کرتا ہے, اس نے اپنے رسک رولز ڈال کے جس طرح کسٹم گرین چینل میں کلیئر کر رہا ہے وہ بھی گرین چینل میں کلیئر کرے. تو پر فورس ان کو کنسائنمنٹ جو لیس رسکی ہیں اور ریلائبل ٹریڈرز کی ہے وہ ان کو گرین چینل میں کلیئر کرنی پڑے گی. تو اس وقت اگر وہ 100% دیکھ رہے ہیں فار ایگزامپل, تو اس سسٹم کے آنے کے بعد شاید وہ 20-30% دیکھ رہے ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں دیکھ پائیں گے. ایک بات. دوسری یہ کہ اس وقت اگر NF کنسائنمنٹ روکتا ہے تو مینول انوائرمنٹ میں روک رہا ہوتا ہے, تو اس کی تو کوئی آپ اسسمنٹ نہیں کر سکتے کہ کتنی کنسائنمنٹ اس نے روکی یا DPP نے روکی, کتنی ایگزامن کی, اس میں سے نکلا کیا. جب یہ سسٹم پہ روکا جائے گا اور اس کے اوپر ان کی جو آؤٹ کمز ہیں وہ ریکارڈ ہوتی جائیں گی, تو ایوری ڈپارٹمنٹ ول بی ریسپانسبل فار اٹس پرفارمنس, کہ اس کا ہٹ ریٹ کیا ہے, کیوں وہ روک رہے ہیں. تھرڈلی جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ گورننگ کونسل کی ہے. اس کے بزنس ماڈل میں گورننگ کونسل ہے اور وہ اوورسائٹ کرے گی اس پورے سسٹم پہ. اس کو فائنانس منسٹر لیڈ کر رہے ہیں, اس میں فیڈرل سیکرٹریز ہیں اور وہ کوارٹرلی ملنے کے پابند ہیں انڈر دا لا, اور ان نے یہ دیکھنا ہے کہ کس ڈپارٹمنٹ نے کون سا پروسیس کیوں نہیں آٹومیٹ کیا, کیوں نہیں اس کو امپروو کیا, کیا ان کی پرفارمنس رہی ہے انکلوڈنگ کسٹمز. تو دیٹ از اے بگ چیک آن ایوری بڈی, جو کہ اس وقت ایک اس لیول پہ کہ ان کو لیگل پاورز ہوں وہ کہیں پہ اویلیبل نہیں ہے, لیکن سنگل ونڈو ایکٹ آنے کے بعد وہ آ جائے گا. جو آپ کا لاسٹ کوشچن تھا یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اس پورے پروجیکٹ کو یہاں تک پہنچانے کے لیے ہم نے وی باک کے پیسے ہی استعمال کیے ہیں. جو وی باک میں آپ لوگوں نے GD فی جمع کرائی ہے, گورنمنٹ نے ہمیں ابھی تک 2 کروڑ روپے ریلیز کیے ہیں اس پورے پروجیکٹ کے. اور انٹرنیشنلی جو کنسلٹنٹ آئے تھے تو اس پروجیکٹ کی انہوں نے جو کاسٹ نکالی تھی وہ $163 ملین تھی. ٹریڈ لینس جو سنگاپور کی سنگل ونڈو کو ڈیولپ کر چکے تھے. تو ہم نے جو انڈیجنس سولوشن لایا ہے کہ جی ہم اپنے لوکل IT کمپنیز کو, لوکل IT ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جو فنڈنگ کا سورس ہے وہ وی باک کی GD فی ہے, اور اسی ماڈل پہ ہم اس سسٹم کو بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. کیونکہ پرابلم یہ آتی ہے کہ جب پیسوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس طرح کے پروجیکٹس میں یا IT سسٹم میں جہاں پہ اپنے امیجیٹلی ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, تو گورنمنٹ کے جو پروسیسز ہوتے ہیں وہ کافی لمبے ہوتے ہیں اور اس میں پھر پیمنٹ آپ کو ملتی نہیں, وہ پروجیکٹ جو ہیں وہ ٹائملی ٹیک آف نہیں کرتے. تو ہمارا جو پروجیکٹ ہے الحمدللہ یہ اپنے ٹائم سے پہلے امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور کم بجٹ میں ہو رہا ہے, اور اس میں کسٹمز کی GD فی کا مین رول ہے. تھینک یو. اچھا سر, بفور نہیں پہلے 1 منٹ آپ اس سے پہلے میں ذرا ایک چیز شیئر کر لوں کہ عمران صاحب ہماری یہ خواہش ہوگی یا ایک چیز کا سجیشن ہے کہ اس میں کوئی کمپیوٹرائز پروفائلنگ جیسے آپ لوگ ٹریڈر کی کرتے ہیں اسی طرح آفیسر کی یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی ہو, اور وہ پھر شیئر بھی ہو کسی کے ساتھ پرائیویٹلی ان ٹرمز کے جی کہ کم از کم ٹریڈ باڈیز کے ساتھ یا اس کے ساتھ, تاکہ اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو. لیٹس سے فار ٹرمینل آپریٹرز کی بات کر لیں یا پلانٹ پروٹیکشن کی کر لیں یا کسی اسیسنگ آفیسر کی کر لیں, تاکہ آپ کے پاس آن اسکرین اویلیبل ہو
कि उसकी इंटरनली स्टाफ की क्या प्रोफाइलिंग है और उसकी क्या परफॉर्मेंस है. जी, थैंक यू. देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान सिंगल विंडो की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो उसमें एफपीसीसीआई का मेंबर भी हैं, इसमें पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के भी हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हैं. ये वो तमाम लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है कि कॉमर्स बढ़े, ट्रेड बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े. तो उनको इन्फॉर्मेशन तो सिंगल विंडो पे जो कुछ है उनकी एक्सेस भी होगी. प्लस जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर में जो सेक्टर स्पेशलिस्ट हैं, लॉजिस्टिक्स के, आईसीटी के, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, वो तमाम लोग होंगे. तो चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे हर डिपार्टमेंट पे, हर एक स्टेक होल्डर पे. पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम में जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं तो हमें पता चलेगा कि जी कौन सा जो शिपिंग लाइन है वो क्या चार्ज कर रहा है, कितना उनका टर्नओवर है, कितना टाइम वो लेते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन सा टर्मिनल ऑपरेटर कितनी कॉस्ट ले रहा है. वो तमाम की तमाम चीजें रिकॉर्ड हो रही होंगी इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि पेमेंट भी इस पे हो रही होंगी, क्लियरेंसेस भी उस पे हो रही होंगी. तो तमाम जो डेटा है वो अवेलेबल होगा फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द रेलेवेंट बॉडीज टू असेस एंड टेक रिमीडियल मेजर्स. लीगली उसकी जो आप प्रपोजल दे रहे हैं कि जी ट्रेड बॉडीज उसकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करें, आई डोंट थिंक कि वो एक्ट के अंदर इस वक्त तो पॉसिबल है. लेकिन जो बाकी अरेंजमेंट है उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस तो सब पे रखे गए हैं. जी सर, प्लीज. इमरान साहब, मेरा नाम हुसैन है एंड आई एम फ्रॉम रजब अली एंड सन्स कराची, क्लियरिंग एजेंट हूं मैं बेसिकली. और मेरा पहला क्वेश्चन इज रिगार्डिंग टू इंपोर्ट पॉलिसी. ये इंपोर्ट पॉलिसी में एक ऑप्शन है फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल के लिए और फूड स्टफ के लिए शेल्फ लाइफ का. ये उनकी 75% शेल्फ लाइफ होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ आईजीएम. अब जब डेट ऑफ आईजीएम से शेल्फ लाइफ कैलकुलेट करते तो इसका मतलब है कि जहाज आ जाए वो उसका आईजीएम मिल जाएगा, फिर हम मिनिस्ट्री को अप्लाई करेंगे और हमें वो मिलेगा. इंस्टेड ऑफ इसको अगर इसको बीएल डेट से रिलेट कर दिया जाए तो वी कैन फाइल एवरी डॉक्यूमेंट्स आफ्टर एज सून वी रिसीव द बीएल and we can file the case to the concerned ministries and we can get the goods out quickly. हमारा टाइम खराब नहीं होगा. दूसरा मेरा मसला था, एक एचएसपोर्ट की क्लासिफिकेशन है, मोटरसाइकिल है, इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल 8711 ऑलरेडी 8711 इट्स ऑलरेडी इन द कस्टम टैरिफ. कस्टम टैरिफ में इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल को सीकेडी और सीबीयू के लिए दो अलग अलग क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है और उसी को सेल टैक्स का शेड्यूल 6 और शेड्यूल 8 में दिया हुआ है और इनकम टैक्स में भी दिया हुआ है. उसमें एचएस कोड में इन्होंने ऐसी गड़बड़ की हुई है कि आप कोई मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिकल रिलीज जीरो ड्यूटी पर रिलीज ही नहीं करा सकते. नंबर तीसरा इंपॉर्टेंट बात इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री, आईओसी और कोटा, इनपुट आउटपुट कोटा का मसला. ये ऑल द टाइम वी गो टू द कस्टम हाउस, कस्टम डायरेक्टरेट एंड वी अप्लाई फॉर द कोटा. इसको ऑनलाइन कर दीजिए क्योंकि सारे एलटी मेजरली एलटी यूनिट्स हैं, लार्ज टैक्स पे यूनिट्स हैं. They don't do anything wrong. उनके फार्मास्यूटिकल या मेरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं तो वो इंडस्ट्रीज के जो रॉ मटेरियल आ रहा होता है या उनकी जो पैकेज मटेरियल आ रहा होता है सब काउंटेबल होता है. और स्पेशली जो प्रिंटेड मैटर होता है जिस पे उनकी कंपनी का नाम प्रिंट हुआ है उस पर भी आईएसओ कोटा चाहिए. आई डोंट अंडरस्टैंड. तीसरा था वैल्यूएशन एडवाइस का बात, आपने वैल्यूएशन की बात हो रही थी वैल्यूएशन के लिए. तो वैल्यूएशन में सर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेक्शन 25(1) का, वो है जी कि सेक्शन 25(1) के तहत द प्राइस पेड और पेएबल विल बी टेकन एज अ बेसिस फॉर असेसमेंट. अगर आप उसको देखें तो अगर हमारी प्राइस पेड और पेएबल इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर व्हिच इज अ इंडेंट और अ परफॉर्मा इनवॉइस. आज तक हमारे किसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में इसको रजिस्टर नहीं किया जाता, ना परफॉर्मा इनवॉइस को. सर ये पाकिस्तान सिंगल विंडो से रेलेवेंट है. इट इज रेलेवेंट टू पाकिस्तान सिंगल विंडो. If you put that performa invoice or indent number in the valuation system, आपने कहते हैं ना सेल्फ असेसमेंट होना शुरू हो जाएगा. तो सेल्फ असेसमेंट उस डेट से होना चाहिए जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर हुआ है. All the questions are related to the thing. This is all. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर. आपकी जो प्रपोजल्स हैं आई बिलीव काफी लोगों की प्रपोजल्स होंगी जो सिंगल विंडो के साथ रेलेवेंट होंगी. तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि वो कोई आपका फोरम उसको कलेक्ट करके हमें भिजवा दें जो रेलेवेंट हमारे साथ हो. जहां तक क्लासिफिकेशन और वैल्यूएशन का ताल्लुक है तो आई बिलीव कि जो कस्टम्स हैं, टैरिफ या पॉलिसी, आई थिंक वो बेहतर आपके इन इश्यूज को देख सकेंगी. हमारा तो ये है कि जी जितनी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं लोकली एंड इंटरनेशनली. हमारा जो आपने बात की कि जी
इंडेंट के हवाले से या सेल्फ क्लियरेंस के हवाले से, तो उसमें वी आर ट्राइंग टू गेट कनेक्टेड विद द ब्लॉकचेन जो इस वक्त मर्स और IBM ने डेवलप किया है, जिसमें ट्रेडलेंस के नाम से, जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाती है. इसमें इनवाइस है, पैकिंग लिस्ट है, BL वगैरह है, और इस तरह आप उस पर अपनी इंफॉर्मेशन लोड कर सकते हैं. जैसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, तो वो उसकी जो क्लियरेंसेज हैं वो बड़ी तेज होती हैं, और उसमें ये कि डेटा भी सिक्योर होता है. जो लार्ज टैक्स पेयर्स हैं, आई थिंक उसका इस ट्रेडलेंस का उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ स्विफ्ट क्लियरेंसेज, और कस्टम्स को ये फायदा होगा कि जिनको हनका कंसाइनमेंट देखने की जरूरत नहीं होगी या उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने की जरूरत नहीं होगी. तो वो एक अलग पैराडाइम है उस पर इंटीग्रेशन के हवाले से, और जो सिस्टम डेवलपमेंट के हवाले से सिंगल विंडो सपोर्ट कर रही है कस्टम्स को, वो उस हद तक ठीक है. बाकी जो इंपोर्ट पॉलिसी में और इस तरह के जो आप बात कर रहे हैं ग्रेनुलर डिटेल्स, तो आई थिंक जो रेलेवेंट ऑफिसर्स होंगे उनको पास आपको जाना पड़ेगा ताकि आपके इश्यूज रिजॉल्व हो सकें. जी, हुमायूं साहब प्लीज. Thank you, Imran sir. It's a very good presentation that you have given. My only question to you is, have you made any study on comparison of Pakistan module with the other countries in the world? Have you any study on that? And if you have some report on that study, we would like to share that with the private sector so that we could give you our point of view. Thank you. Can you kindly repeat your question? I couldn't get you. My question is that do you have any comparison study of Pakistan module as compared to the other countries' module in practice of single window facilities? Did you get it clear? Yes, sir. We actually studied the different single window systems. Primarily, Korea and Singapore are the leading ones. So we examined very closely how Korea has done it, how Singapore is doing it. And we have copied certain things from their model, and we have innovated a few items on our own. और ये जो टेक्निकल डिटेल्स हैं कंपैरिजन के, ये आपको मिल जाएंगे. जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हमारी वेबसाइट में हैं, उसमें जो क्रिम्सन लॉजिक है जिसने सिंगापुर का डेवलप किया था ट्रेडनेट, तो उनसे हमने सिचुएशन एनालिसिस करवाई थी और इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप और ब्लूप्रिंट पाकिस्तान सिंगल विंडो के लिए बनाया था. वो रिपोर्ट भी अवेलेबल है. और इसके अलावा जो हमारा अपना इंटरनल कंपैरिजन है वो ये कि इस वक्त दुनिया में कोई भी एक सिंगल विंडो नहीं है जो कि कस्टम्स, अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल और पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे, एक पोर्टल पे अवेलेबल करे. आई थिंक दैट्स द यूनिकनेस दैट वी हैव. I think there is a single window facilities available around the Middle East countries. You should also try to see what do they offer, so that in like UAE, it is in practice for last many years. So we should try to adopt those sort of facilities where we can have this reduction of time. एहसान सर. जी सर. जी एहसान सर. अस्सलाम वालेकुम. मेरा ताल्लुक जो है वो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से है. मेरा बस एक छोटा सा सवाल था कि जैसे आपने बताया कि जो पहली इंफॉर्मेशन हम डेटा जो प्रोवाइड करेंगे वो बेस लाइन हो जाएगी, तो अगर उसमें कोई अमेंडमेंट होगी तो उसका कोई टाइम फ्रेम होगा कि अमेंडमेंट उसमें करा सकते हैं, और अगर कोई सिस्टम ऐसा होगा कि वो लॉक हो जाएगी, उस सवाल में थोड़ा सा पूछना था. देखिए जी, लॉक कोई चीज नहीं होगी. आप इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्रोसेसिंग हो रही है. इस वक्त कस्टम्स में गुड्स डिक्लेरेशन है, हम सिंगल डिक्लेरेशन लेके आ रहे हैं. सिंगल डिक्लेरेशन बेस्ड है. जितने भी उस पर्टिकुलर आइटम के हवाले से रेलेवेंट डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस हैं वो उस डिक्लेरेशन के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और उसको पॉपुलेट करना पड़ेगा. तो अगर आप एक इंफॉर्मेशन देते हैं उसके बेसिस पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, आपने एक HS कोड दे दिया जिसपे एनिमल क्वारंटीन ने कोई सर्टिफिकेट इशू करना है, तो वो अगर आपका कार्गो पाकिस्तान पहुंचा भी नहीं है तो आपको फैसिलिटी होगी कि आप इंफॉर्मेशन दे दें ताकि एनिमल क्वारंटीन उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दे बिफोर योर गुड्स अराइव इन पाकिस्तान. तो उस हद तक तो आपने जो इंफॉर्मेशन दे दी है वो बेसिकली जब आपने एनिमल क्वारंटीन को दी तो कस्टम्स को भी आ गई
वही इंफॉर्मेशन बैंक्स के पास जाएगी, वही इंफॉर्मेशन शिपिंग कंपनीज के पास जाएगी। तो आप एक तरह का समझ लें कि ये एक ब्लॉकचेन है जिसमें इंफॉर्मेशन की सैंक्टिटी तो रहेगी। ये नहीं होगा कि आप एक इंफॉर्मेशन एक डेटा एलिमेंट के हवाले से अलग कस्टम्स को दें और बैंक्स को अलग दें या दूसरे डिपार्टमेंट को अलग दें। आपको इंफॉर्मेशन एक देनी पड़ेगी। उस इंफॉर्मेशन को अमेंड करने के लिए ऑफ कोर्स इस तरह है जिस तरह इस वक्त कस्टम में आप इंफॉर्मेशन अमेंड करते हैं, वो रूम तो होगा जहां तक रूल्स अलाउ कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स के हवाले से अगर आप हैं तो आपके जो आईजीएम है उसमें आप चेंजेस कर रहे होते हैं, तो उसके लिए एक टाइम लाइन डेफिनेटली सिंगल विंडो में भी अलाउ होगा। जूम पे हम जाना चाहेंगे, जूम पे इरफान असगर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी आवाज आ रही है जी मेरा नाम जी इरफान असगर है। मैं डिप्यूटी चेयरपर्सन हूँ केमिकल्स कमेटी पंजाब सेक्टर एफपीसीसीआई का, और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ लाहौर का केमिकल डाइज मर्चेंट एसोसिएशन पाकिस्तान। सबसे पहले मैं फेडरेशन हाउस मियां अंजुम निसार साहब का और मियां नासिर हयात मकबूल साहब का और आपकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज एक बहुत बड़ा लैंडमार्क पाकिस्तान अचीव करने जा रहा है, जो पाकिस्तान सिंगल विंडो ऑपरेशंस का इंट्रोडक्शन है। सर, इस हवाले से मेरी कुछ सजेशंस हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर मसला वैल्यूएशंस के हिसाब से रहता है कस्टम्स के साथ। मेरा सवाल ये है कि क्या हम वर्ल्ड कस्टम्स के साथ इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं ताकि हम उनसे अपनी प्राइस को कंफर्म करवाया जा सके, नंबर 1। नंबर 2 सर, मेरा एक मशवरा है कि आप इसमें एज एन एडवाइजरी तमाम एसोसिएशंस को भी आप इसमें रजिस्टर करें। और कोविड के अंदर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हैं। थर्ड सर के ये है कि हमारे यहाँ एक इश्यूज आते हैं कि कभी एक बायर एक कमोडिटी को रिफ्यूज कर देता है, अब उसको शिफ्ट करना पड़ता है दूसरे बायर को। इस सिलसिले में जो चेंज ऑफ नेम का प्रोसेस है कस्टम्स का, वो बहुत कम्बरसम है और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट टेक्स सेवरल वीक्स टू परफॉर्म दिस चेंज। तो आपके सॉफ्टवेयर में इसका एक बहुत अच्छा, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत इजी, जो पेमेंट नहीं करना चाह रहा और नया बायर उस माल को लेना चाह रहा है, तो उसकी शिफ्टिंग के लिए एक बहुत इजी प्रोसीजर आपके यहाँ आप हमें प्रोवाइड करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू कैन आंसर माय क्वेश्चंस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक तो ये कि जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वो वैल्यूएशन के ऊपर कोई एडवाइस नहीं देती हैं। अलबत्ता ये कि जो इंटरनेशनल डेटा सेट है उसमें अगर हम इंटीग्रेट होते हैं तो जो इंफॉर्मेशन है अबाउट वैल्यूएशन वो बेहतर आ सकती है। और इस वक्त जो हमारा अपने इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कस्टम का है वो इंटरनल डेटा के ऊपर रिलायंट है, एक्सटर्नल डेटा हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो ग्रेजुअली हम एक्सटर्नल डेटा यूज करेंगे। जो आपकी बात है कि जी इंटरनेशनल वैल्यूएशन अगर अवेलेबल होगी तो आपकी लोकल वैल्यूएशन इंप्रूव हो सकती है, ज्यादा फेयर हो सकती है। तो यस, वी आर गोइंग टू डू दैट इंशाल्लाह। जहाँ तक आपके जो बाकी सवाल हैं कि हम इसको जो एसोसिएशन है उसको कैसे इसमें सब्सक्रिप्शन दें, आई बिलीव आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव एंटिटीज हैं उनको स्टेक होल्डर एडवाइजरी कमेटी के तौर पे आप गवर्निंग काउंसिल को और पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी को एडवाइजरी दे सकते हैं कि जी आप ये पर्टिकुलर फीचर अपने सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करा दें। वो सिस्टम मेरे ख्याल में ग्रेनुलर नहीं हो सकता कि जी किसी पर्टिकुलर आइटम को कवर करे, लेकिन एक पर्टिकुलर इशू को कवर कर सकता है। जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया कि जी आपका अगर बायर चेंज हो गया तो उसके हवाले से प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाए। अब बायर जब चेंज होता है तो उसमें बैंक भी इन्वॉल्व होता है, उसमें कस्टम भी इन्वॉल्व होता है, उसमें शिपिंग लाइन और बाकी लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। तो वो अगर एक प्लेटफॉर्म पे सारे अवेलेबल हों तो इस तरह का प्रोसेस आई बिलीव डेफिनेटली स्पीड अप होना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो जल्दी एक्सचेंज हो सकेगी। शौकत रियाज साहब प्लीज। नीचे नीचे।
جی سر السلام علیکم. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں شبیر صاحب کا اور ہمارے انجم نثار صاحب اور یہ خرم صاحب بیٹھے ہیں. سب سے پہلے تو اس میں ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یا ایک کویسچن میرا یہ ہے کہ کسٹمز میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ کورٹ چلے جاتے ہیں, کوئی پروویژنل اسیسمنٹ کرانی ہوتی ہے یا کوئی وہاں پہ کانفلکٹ ہوتا ہے, تو ایک ہی چیز 10 امپورٹر منگا رہے ہیں, اگر ایک امپورٹر کورٹ گیا ہے اور وہاں سے وہ ریلیف لیا ہے, باقی امپورٹر جب جاتے ہیں تو وہ سب کو کہتے ہیں کہ آپ بھی کورٹ جائیں ورنہ یہ آپ پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا یہ والا کیس. تو ہر آدمی وہ چلا جاتا ہے. تو کیا یہ پی ایس ڈبلیو میں بھی اسی طرح کیا جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے جی ایک چیز سیٹ ہو گئی ہے یا کورٹ آرڈر آ گیا ہے تو وہ سب پہ لگے گا بجائے اس کے کہ اسی پہ لگے گا جو لے کے آیا ہے. نمبر 2, یا لاہور میں لایا ہے تو کراچی والوں کو نہیں لگاتے ہیں, وہ اس طرح کرتے رہتے ہیں. دوسری بات جو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو امپورٹ جتنی بھی آ رہی ہے اس میں ٹائم منیمائز کر کے کتنا کریں گے؟ آج تک یہ گرین چینل اور بلو چینل اور ریڈ چینل کو یہ منیمائز کر کے یہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ گرین چینل کو بڑھا کے ہم 50% کر رہے ہیں, 60% کر رہے ہیں. تو کیا یہ اس طرح کا کوئی آج تک نہیں ہوا؟ جب بھی امپورٹ آتی ہیں بے شک ایک آئٹم 10 مرتبہ آپ منگائیں, 10 کی 10 مرتبہ وہ زمین پہ چلا جاتا ہے. یہ ہم بھگت رہے ہیں اور کافی عرصے سے بھگت رہے ہیں. ان کے پاس کیا پروسیجر ہے یہ سارے کام صحیح کرنے کے لیے؟ شکریہ. سر جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ کورٹ کا ڈیسیجن جو ہے وہ کسٹم نہیں مانگتا, تو آئی بلیو کہ سپریم کورٹ کا اگر کوئی ورڈکٹ آ جاتی ہے تو وہ یونیورسلی اپلائی ہوتی ہے. ہائی کورٹ کے کیس میں اس پرٹیکولر جو جس نے ریلیف لیا ہوتا ہے اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. لیکن میں تھوڑی سی آپ کی ایکسپیکٹیشن کو ٹون ڈاؤن کرنا چاہ رہا ہوں کہ سنگل ونڈو جو ہے وہ صرف ایک الیکٹرانک پلیٹ فارم ہے جس پہ انفارمیشن لی جائے گی اور آگے ڈسیمینیٹ کی جائے گی اور اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ کمیونیکیٹ کیا جائے گا. اگر آپ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ جی جو کورٹ کے سسٹمز ہیں اس کو بھی سنگل ونڈو ٹھیک کرے گا, تو آئی تھنک یہ تھوڑی سی آپ کو اپنی اسسمنٹ ٹھیک کرنی چاہیے سنگل ونڈو کے حوالے سے. اور جہاں تک گرین چینل کا تعلق ہے تو پاکستان کسٹم اس وقت 50% جو امپورٹس ہے کراچی پہ وہ گرین چینل میں ہی کلیئر کر رہا ہے, اور ایکسپورٹس تقریباً 78% کے قریب گرین چینل پہ جا رہی ہیں. یہ میں آپ کو پچھلے مہینے کی فگرز کوٹ کر رہا ہوں. تو یہ اگین ایک گریجول پروسیس ہے. کسٹمز اپنا رسک مینجمنٹ سسٹم میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اس کو بہتر کر رہا ہے, اور جیسے اس میں بہتری آتی جا رہی ہے تو جو گرین چینل کی کلیئرنسز ہیں وہ ہم بڑھاتے جا رہے ہیں. تو آئی بلیو کہ آگے سنگل ونڈو کے آنے کے بعد اس میں مزید امپرومنٹ اس طرح ہو سکے گی کہ ایک تو جو رسک پروفائلنگ ہے وہ بہتر ہو پائے گی کیونکہ ہمارے پاس ڈفرینٹ لیولز اور سورسز سے انفارمیشن آ رہی ہوگی اور کسٹم کی ویزیبلٹی بڑھ جائے گی. اس صورت میں ایک تو یہ گرین چینل کی جو ریشو ہے یہ بڑھ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسٹمر کو گرین چینل میں کلیئر کر دے اور آپ کو ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن یا پی ایس کیو سے کہیں کہ آپ ایگزامینیشن کرانے کے بعد یا سیمپل آپ دیں گے تو اس کے بعد آپ کا کارگو کلیئر ہوگا, تو پریکٹیکلی تو کوئی فرق نہیں پڑا گرین چینل کا. گرین چینل تو یہ ہے کہ آپ کی اگر کوئی کنسائنمنٹ گرین چینل میں ہو تو وہ پورٹ سے آپ کے ویئر ہاؤس تک پہنچے ود ان منٹس, وہ جو پروسیسنگ وہ منٹس میں کمپلیٹ ہو اور جو ہرڈل اس میں کوئی نہ ہو. تو سنگل ونڈو کا یہ فائدہ ہوگا کہ انٹیگریٹڈ رسک مینجمنٹ ہوگا اور باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی اسی پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے, تو ایک ٹرو گرین چینل کی فیسلٹی اویلیبل ہو جائے گی ٹریڈ کو. محمد الیاس صاحب زوم پہ پلیز. السلام علیکم. میرا تعلق انلمیٹڈ سے ہے. انلمیٹڈ آٹو انڈسٹری میں بھی کام کرتا ہے اور جوٹ انڈسٹری میں بھی کام کرتا ہے. تو آٹو کے حوالے سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بینگ ایز وینڈر ہم سینکڑوں پارٹس منگا رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک گڈس ڈکلیریشن میں آ رہے ہوتے ہیں, تو اس ڈکلیریشن کو پریپیئر کرنے کے لیے اچھا خاصا وقت ریکوائرڈ ہوتا ہے. ہم پہلے بھی جب بی باک کی الائنمنٹ ہو رہی تھی ہم نے اس وقت بھی ایک گزارش کی تھی کہ اگر یہ جو پارٹس یا ڈسکرپشن کا جو فیچر ہے اس کو اگر اپلوڈ پہ ڈال دیا جائے تو یہ نہ صرف ٹائمنگ کی بچت کرے گا, تو کیا پی ایس ڈبلیو کے حوالے سے اس میں کوئی ایسا فیچر ہے کہ جس میں اپلوڈز ہوں؟
इसी के साथ एक दूसरा ज़मनी सवाल ये है कि चूंकि ऑटो से ताल्लुक है, वेंडर इंडस्ट्री है, तो ईडीपी के कोटाज भी होते हैं। तो उसमें भी चूंकि इस वक्त जो विबॉक का जो केस है वो ये है कि हमें आइटम बाय आइटम जो है ना वो कोटा अपलोड करने पड़ते हैं। तो ये सवाल उसके साथ ज़मनन आ जाता है कि क्या डिस्क्रिप्शन और लाइन आइटम को अपलोड करना साथ ही साथ विबॉक ईडीपी कोटा के साथ अपलोड करना पॉसिबल होगा या नहीं। दूसरा सवाल मेरा जूट के हवाले से है, जो कि आपका प्लांट प्रोटेक्शन के हवाले से है। आपने कहा कि ये सारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी। अब छोटी सी बात एक मैं जिक्र करूं कि जब टर्मिनल पे रश हो जाता है, उनके पास काम ज़्यादा होता है या एक्सपोर्ट के कार्गो का प्रेशर होता है और उनको जहाज रिलीज करने होते हैं, तो जो रिक्वेस्टें गई भी होती हैं कंटेनर के ऑफलोड करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए ताकि प्लांट वाले उनको आके विजिट करें, तो वो हो नहीं पाती हैं और अल्टीमेटली जो है ना वो इम्पोर्टर सफ़र कर रहा होता है। नंबर वन। दूसरा ये कि एक तो टाइमिंग्स, चूँकि फिजिकल आपकी आवाज गायब हो गई है। बात करें जो आपके सवाल पूछे हैं सर, मैं जहां तक सुन पाया हूं, तो एक तो ये कि आपकी जो पॉइंट है कि जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको आइटम बाय आइटम जीडी में टाइप करने के बजाय आप उसको अपलोड कर सकें और इस तरीके से जो आपका कोटा है वो आप अपलोड कर सकें। आई थिंक ये डूएबल काम है, ये हो सकता है। और ये पर्टिकुलर पॉइंट जो आपने हाईलाइट किया है, ये अपनी डेवलपमेंट टीम के साथ हम डिस्कस कर लेंगे एंड विल कीप दैट इन माइंड। जहाँ तक आपने ये कहा कि जी टर्मिनल के ऊपर रश हो जाता है और कंटेनर टाइमली जो है वो इंस्पेक्शन के लिए कॉल नहीं जाते हैं, तो उसमें हमारी एक तो ये आ रही है इंटरवेंशन के आप पोर्ट से बाहर अगर एग्जामिनेशन कर सकते हैं तो वो वाला मॉडल ज्यादा बेहतर रहेगा बजाय इसके कि पोर्ट के ऊपर आप एग्जामिनेशन कर सकें। तो एक तो ये इंटरवेंशन हम प्रपोज कर रहे हैं। और दूसरा ये कि पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम के आने के बाद ये जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है ये थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी और उसमें टाइम स्टैम्प्स लग जाएंगे कि कब इंफॉर्मेशन मिली किस टर्मिनल ऑपरेटर को और उसने कितना टाइम लिया उसको फैसिलिटेट करने के लिए। तो वो एक पैरामीटर हो सकता है पोर्ट टर्मिनल के जो उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, और उसके ऊपर जो रेलेवेंट मिनिस्ट्री है वो कोई रेगुलेशन भी कर सकेगी। इस वक्त तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ही नहीं, तो जब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो उस पर कोई रेगुलेशन करना भी पॉसिबल नहीं रहता। लेकिन जब वो क्लियरली इन्फॉर्मेशन आती रहेगी तो आई बिलीव के ये जो फाइन ट्यूनिंग है ये एक इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जी अर्शद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अरशद उस्मान मेरा नाम है, पाकिस्तान केमिकल डाइज मर्चेंट एसोसिएशन से ताल्लुक है मेरा। अच्छा, मैं बात ये करना चाह रहा था कि आपकी इंटेंशन माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सारी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं, टाइमिंग भी आप करना चाह रहे हैं, मतलब सेव करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो क्वेश्चन आंसर लाए इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी एप्रीहेंशंस हैं और वो 74 डिपार्टमेंट से हैं, वो अलग अलग, कोई कस्टम्स की बात कर रहा है, कोई किसकी बात कर रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये आप एक ऐसा जो है एक वेबिनार करें जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा करके जो 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 ट्रेड बॉडीज की जो एप्रीहेंशन है उनको खत्म करें। अब कई कस्टम का जो प्रॉब्लम है, अगर आपसे बात करते हैं आप कहते हैं ये कस्टम का मसला है, ये उसका मसला है, तो उस तरीके से ये होगा। आपकी इंटेंशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन आप कामयाब उसी वक्त हो सकते हैं जब ये सारे 74 डिपार्टमेंट्स एक साथ बैठ के आपसे कोऑपरेट करें और कोई टाइम लिमिट हो, कोई उनके ऊपर कोई बाइंडिंग होनी चाहिए कि यार ये इतने टाइम में ये काम करेंगे। अदरवाइज जो है ना ये पूरा सक्सेस होना जो है बड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब मैं आपको डिस्करेज खुदा न खास्ता नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मकसद ये है कि आपकी नीयत बहुत अच्छी है और ये होना भी चाहिए, लेकिन ये है कि इसमें जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो सारी चीजें हैं, दे शुड ऑल कम टुगेदर और इसमें जो है ना इसमें जो है ना इसमें अपना जो पार्ट प्ले करें ताकि ये जो है ना ये कामयाब हो। ये एक बात। दूसरा एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा, ये डॉक्यूमेंटेशन, इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, इस तरह की चीजें आती हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स शुड कम टू पाकिस्तान। आजकल कोविड का दौर है, डॉक्यूमेंट्स बाज दफा नहीं आते, कहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो टेलेक्स रिलीज का एक ऑप्शन होता है, हमारे मुल्क में है नहीं। तो ये
یہ اسٹیٹ بینک نے سالو کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر ایک ساتھ بیٹھ جائیں تو یہ بہت سارے پرابلمس جو ہے نا, بہت سارے لوگوں کے جو ہے نا یہ پرابلمس سالو ہو جائیں. تھینک یو ویری مچ. سر دیکھیں, ایک تو آئی تھنک اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ کوئی پلیٹ فارم تو ڈیولپ ہو گیا جو کہ پورے ٹریڈ کو انٹائرٹی میں دیکھ رہا ہے, لاجسٹکس کو بھی دیکھ رہا ہے, بینکس کو بھی دیکھ رہا ہے, کسٹمز کو بھی دیکھ رہا ہے, اور او جی ایس کو بھی دیکھ رہا ہے, ادر گورنمنٹ ایجنسیز کو دیکھ رہا ہے. تو وہ پلیٹ فارم اگر آ جاتا ہے تو کم از کم وہاں پہ آپ ایشوز ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, ان کو ریزالو کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے یہ پریزنٹیشن دیکھی ہوگی تو جو وی باک میں رجسٹریشن یا یوزر آئی ڈی لینے کا پروسیس تھا وہ 10 دن تو کم از کم اس پہ لگتے تھے, اور اس میں 22 ڈاکومنٹس ہوتے تھے. اس میں آپ کا رینٹل ایگریمنٹ ہوتا تھا, اس میں آپ کے بجلی کے بل ہوتے تھے, اس میں آپ کے چیمبر آف کامرس کی سرٹیفکیٹ لگتی تھی, پھر آپ فزیکلی وزٹ کرتے تھے, سی این آئی سی اور باقی ڈاکومنٹس. تو وہ جو پورا پروسیس تھا اگر آپ دیکھ لیں گے تو وہ منٹس میں آ چکا ہے. آپ نے صرف اپنا موبائل نمبر دینا ہے جو کہ آپ کے سی این آئی سی کے ساتھ لنکڈ ہے, اور آپ نے سی این آئی سی دینی ہے. اس کے بعد پروسیس چلتا ہے اور سیم ڈے آپ کی یوزر جو رجسٹریشن ہے وہ ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ پروف آف دا پوڈنگ از ان اٹس ایٹنگ. جو آپ کو سسٹم اویلیبل ہو گیا ایک پہلے سٹارٹ میں, تو اٹ ایکچولی از انڈیکیٹو آف کہ پیچھے آگے جو مزید آ رہے ہیں ماڈیولز اس میں کیا ہوگا. اسی طریقے سے جو میں نے آئی فارم ای فارم کا مینشن کیا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بینکس کے پاس کتنے ڈاکومنٹس لے کے جاتے ہیں, کتنا ٹائم بینک کا مینیجر لیتا ہے آپ کا آئی فارم ایشو کرنے میں, اور وہ آئی فارم کی وجہ سے کیا مشکلات آئی ہیں اور وہ کس طرح ریزالو ہو رہی ہیں اس سنگل ونڈو کے تھرو. تو جس طرح یہ ماڈیول آتے جائیں گے آپ کے جو اپریہنشنز ہیں وہ ختم ہوتے جائیں گے. ہم یہ کلیم نہیں کر رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی ایشوز انڈر دا سن ہیں پاکستان میں وہ سارے کے سارے ریزالو کر پائیں گے, لیکن جو اسیسمنٹ کی گئی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے, اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا میجر انپٹ تھا, اس میں ورکنگ گروپس بنائے گئے تھے, اس میں ہم ہر ایسوسیشن کے پاس ہم گئے ہیں, اور یہ 2017 میں یہ پروسیس سٹارٹ ہوا تھا. اور جو آپ نے فیڈ بیک دی تھی اس کو کیپچر کر کے, اور جو ہمیں کنسلٹنٹس نے اور جو بات ہم نے ایکسپرٹس ہائر کیے تھے انہوں نے فیڈ بیک دی تھی, اس کے بیسس پہ یہ سسٹم ڈیولپ ہوا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ یہ فکسیٹڈ ہم ہیں. جو آپ نے ٹیلیکس کی بات کی, آئی ایگری ود یو کہ وائی ناٹ, اگر ٹیلیکس آ جاتا ہے اور فزیکل بی ایل نہیں آتا تو اس کے اوپر کیوں نہیں بینک الاؤ کرتا کہ آپ اپنا کارگو کسٹم سے کلیئر کر دیں. دیٹس اے ویلڈ پوائنٹ. یہ پلیٹ فارم آگے اس کے ساتھ آپ میرے خیال میں اگلے آپ کے پاس ہم آئیں گے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے, وہاں پہ آپ یہ پوائنٹ ضرور ریز کر دیں. اور یہ ایک پروسیس رہے گا آپ کے ساتھ انٹریکشن کا, یہ پہلا تو ہے, آخری بالکل نہیں ہے. تو آپ کے جو کوسچنز ہیں ریلیونٹ ٹو پی ایس ڈبلیو, وی وڈ اپریشیٹ دیٹ کہ آپ وہ ریز کرتے جائیں ہمارے ساتھ بھی, اور جو ہمارے باقی پارٹنرنگ ایجنسیز ہیں جن کو ہم آپ کے ساتھ لے کے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بٹائیں گے, تو ان کے سامنے بھی آپ ریز کر دیجئے گا. جی قمر بھائی پلیز. السلام علیکم, میرا نام قمر عالم ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے سنگل ونڈو کے حوالے سے وہ ہے ٹرمینلز, اور ان پر کوئی سیریس ڈسکشن نہیں ہوئی اور زیر بحث نہیں لایا گیا, جبکہ اصل جو ہرڈل ہوگی اس سسٹم میں جو اب سنگل ونڈو آ رہا ہے اس میں ٹرمینلز کی طرف سے ہوگی, کارگو یارڈز کی طرف سے ہوگی, کیونکہ اس وقت جو بھی ٹرمینلز ہیں یا کارگو یارڈز ہیں وہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ جس میں پوری کیپیسٹی ہو اپنے والیوم کو ہینڈل کرنے کی. تو اور یہ جو ہے ہم ڈے فرسٹ سے یہ چیز دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان کے پاس نہ تو ٹرمینلز کے پاس نہ تو اکوپمنٹ ہے پورے ہینڈلنگ اکوپمنٹ, نہ ان کے پاس کوئی اسکلڈ لیبر ہے, نہ ان کے پاس اسپیس ہے. تو اصل جو ڈیلیز ہو رہی ہیں اور اصل جو ہرڈل آئے گی جیسے سنگل ونڈو میں وہ ٹرمینلز اور یہ یارڈ جو کارگو یارڈ جو کھول گئے ان کی وجہ سے آئے گی, اور انہی کی وجہ سے جو ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بڑھ رہی ہے, اور انہی کی وجہ سے جو ہے ٹائم بھی زیادہ کنزیوم ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے میری گزارش ہے کہ ان کے لیے ٹرمینلز کے لیے یا کارگو یارڈز کے لیے سیریس کوئی نوٹس لینا چاہیے, اور ان کو جو ہے فوری طور پر
ताकि ये जो सिंगल विंडो प्रोग्राम आ रहा है इसी तरह से ट्रेड जो है पूरी तरह मुस्तफीद हो सके। अदरवाइज ये सब देखते रह जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये कमर भाई जरा ब्रीफली करें ताकि वो हम ब्रीफ क्वेश्चन कर दें हाँ बस ताकि मेरा हो गया ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सिस्टम तो यकीनन इम्प्रूव भी होता रहेगा और बेहतर होता रहेगा। लेकिन ये टर्मिनल्स को हम डे फर्स्ट से इसी तरह देख रहे हैं और यही हम इसको बड़ी वजह समझते हैं इस सिस्टम में और इस प्रोग्राम में कि भी ये एक हर्डल है और बहुत सीरियस हर्डल है। थैंक यू। लास्ट 2 क्वेश्चंस और फिर हम मेरा ख्याल वाइंड अप करेंगे। इमरान साहब का बहुत शुक्रिया, उनकी टीम का, वो उनकी यहाँ कराची में भी प्रेजेंस है और इस्लामाबाद में भी, और बहुत ज्यादा इसको सीरियसली लोगों ने भी लिया। एनीवे सर, इमरान साहब प्लीज। सर ये जो बात कर रहे हैं टर्मिनल्स की, आई थिंक ये बड़ा क्रूशल पॉइंट था और ये शुरू में जब हमने टाइम रिलीज स्टडी की थी जिसमें हम ने कराची पोर्ट्स पे और पोर्ट कासिम पे हर एक कंटेनर जो आ रहे थे एक सर्टेन पीरियड टाइम में उनके साथ ट्रेवल किया था कि कितना टाइम लगता है जहाज को पोर्ट एंट्री लेते वक्त पोर्ट कॉल के हवाले से शिप टू बर्थ और बर्थ से फिर टू द गेट कितना टाइम लग रहा है कंटेनर्स का, क्रेन्स कितने टाइम ले रहे हैं, जो वहाँ पे प्रोसेसिंग है पोर्ट्स के अंदर वो कितना टाइम ले रहे हैं। तो ये हमें एक बड़ा वाज़ेह हो गया था कि सिंगल विंडो जो है वो पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम के बगैर अपना टारगेट डिलीवर नहीं कर सकेगी इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। इसीलिए पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम को सिंगल विंडो का फीचर बनाया गया है और इटसेल्फ इज एज बिग अ प्रोजेक्ट एज अ सिंगल विंडो इज। और इस वक्त जो गवर्निंग काउंसिल की अप्रूवल हम ले रहे हैं तो उसमें मिनिस्टर सेक्रेटरी जो मैरीटाइम अफेयर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है और हमने पोर्ट के हवाले से जो सिस्टम डेवलपमेंट का काम है वो शुरू कर दिया है विद द हेल्प ऑफ यूएसएड और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बाय दिसंबर 2022 वी विल हैव द पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम एट द सी पोर्ट्स इन कराची अप एंड रनिंग। उससे ये फायदा होगा कि आपको एग्जैक्टली पता चल रहा होगा कि कौन बंदा कहाँ कितना परफॉर्म कर रहा है और कहाँ पे ड्वेल टाइम बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। इस वक्त एक पिक्चर अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट के सामने, लोगों के सामने कि जी कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। मोस्टली कस्टम्स के ऊपर ब्लेम डाला जाता है कि जी कस्टम्स की वजह से पोर्ट पे कंजेशन हो रही है, कार्गो क्लियर नहीं हो रहा है। इस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट के हैं उनको ब्लेम किया जाता है कि जी एनिमल क्वारंटीन या प्लांट प्रोटेक्शन ने अपना काम नहीं किया। तो एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे जब आप ट्रांजैक्ट करेंगे तो बड़ा क्लियरली पता चल रहा होगा कि कौन कितने टाइम में अपने एंड का काम कंप्लीट करके आगे दे रहा है और कहाँ पे इशू आ रहा है। तो आई बिलीव कि जो आपकी बात है वो इट्स इन आवर व्यू और इंशाल्लाह जो एक दफा ये सिस्टम ऑपरेशनल होगा पोर्ट्स के ऊपर भी तो फिर थोड़ी सी मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगी कि एक्सक्यूज लिया जा सके कस्टम्स का या किसी और गवर्नमेंट एजेंसी का। जहां पोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर पोर्ट ही रिस्पॉन्सिबल होगा। Yeah, भाई लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी कंक्लूडिंग। इमरान साहब, हमने अच्छी तरीके से आगे सर आप कराची कस्टम्स में इधर काम कर चुके हैं, हमारे साथ हमारी मामलत भी कर चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि हम ये जो नया मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं तो ये हमारा चौथा मैकेनिज्म होगा गुड्स क्लियर करने के लिए, लैंड सी एयर या और किसी भी जगह से अगर हम क्लियरेंस कराते हैं तो ये चौथा हमारा प्रोग्राम होगा। जिस तरीके से पिछले दिनों में आप पैक्स जाएं और गुड्स डिक्लेरेशन हमारी चेंज होते होते ये चौथा प्रोग्राम है। लंबी लुबाब ये है कि ये मैकेनिज्म जो है वो हम स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर रहे हैं एक नए सिस्टम के साथ। ये बात है। दूसरी बात ये कि सर जिस तरीके से कमल आलम साहब ने टर्मिनल की बात की है तो सर एक एग्रीमेंट हुआ था सर कस्टम्स और टर्मिनल के दरमियान में। सर उस एग्रीमेंट के अंदर जो है बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने वक्त के साथ साथ चेंज करनी थी। सपोज सर मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि सर अगर 3 साल के बाद आज हमारे पास इक्विपमेंट है तो जाहिर है उस इक्विपमेंट के अंदर कोई ना कोई कमी आ जाती है और इक्विपमेंट चेंज भी होता है। आप भी गाड़ी खरीदते हैं कुछ सालों के बाद खराब हो जाती है।
टर्मिनल के पास सर इस वक्त जो इक्विपमेंट है ना वो पिछले 12 साल से वही इक्विपमेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, उसी को रिपेयर करा के चलाते हैं। ये गाड़ी जाती है 2 बजे लिफ्ट करने के लिए कंटेनर को, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं कि वो उसे गाड़ी कब दे। सर इस चीज के ऊपर खास तौर पे सर देखा जाए। शुक्रिया। देखिए सर, ये जो आपने बात की कि स्विच ऑन स्विच ऑफ और चार्ज सिस्टम आ गए हैं, थोड़ा सा मैं इसमें क्लियर कर दूं कि जो सिंगल विंडो सिस्टम आ रहा है तो वीबॉक्स सिस्टम एलिमिनेट इनिशियली नहीं हो रहा है, वो बैक एंड पे चला जाएगा, फ्रंट एंड पे सिंगल विंडो आ जाएगा, लेकिन वीबॉक ऑपरेशनलाइज रहेगा। चेंज क्या होगा कि उसका एक एक मॉड्यूल हम चेंज करते जाएंगे। जिस तरह उनका रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल मैंने आपको दिखा दिया था कि वो क्या था और हम किधर लेके उसको जा रहे हैं, इसी तरीके से आई फॉर्म ई फॉर्म के हवाले से वो क्या कर रहे थे प्रीवियसली आपको बेहतर पता है, और हम क्या करने जा रहे हैं। तो जो चेंजेस आ रही हैं उसके हवाले से सिस्टम अपग्रेड होता जा रहा है, और वो इस तरह आइसोलेशन में अपग्रेड नहीं होगा, आपके साथ आके शेयर करके आपके लोगों को ट्रेन करके वो हम कर रहे हैं। ये जो आउटरीच का और चेंज मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है, इसमें हम आगे जाएंगे। चेंज तो है रिक्वायर्ड। अगर हम ये कहें कि नहीं जी एक सिस्टम आके उसको 20 साल तक या 50 साल तक हम चलाएं, तो आई थिंक वो बात गलत होगी, क्योंकि दुनिया जो है वो आगे जा रही है। जो पिछला सिस्टम हमारा आ चुका था वो गुड्स डिक्लेरेशन के फॉर्मेट पे था। अब दुनिया जो है वो गुड्स डिक्लेरेशन से आगे जाके सिंगल डिक्लेरेशन पे बैठ गई है कि जी आप पीस मील इंफॉर्मेशन ले लिया करें, ट्रेडर को आप बाउंड ना करें कि वो आप फ्रंट इंफॉर्मेशन दें। फॉर एग्जांपल ये जो PSW आ रहा है उसमें हम ये कर रहे हैं कि आपको अप फ्रंट पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कार्गो 20 दिन में पहुंच रहा है तो 20 दिन पहले आप अपनी सिंगल डिक्लेरेशन फाइल कर दें, और अगर उसमें किसी और डिपार्टमेंट की अप्रूवल इन्वॉल्व है तो अप्रूवल का प्रोसेस आगे चले, बजाय इसके कि हम वेट करें कि आपका कार्गो पहुंचे, या हम वेट करें कि आप GD फाइल करने से पहले ड्यूटी टैक्सेस पूरे के पूरे पे करें। आई बिलीव वो जो लिक्विडिटी क्रंच ट्रेडर के ऊपर आता है वो सिंगल विंडो में खत्म हो रहा है कि आप सिंगल डिक्लेरेशन के थ्रू आ रहे हैं। जो जितनी भी चेंजेस आ रही हैं वो फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रेड आ रही है, उसमें ऐसी मजीद कोई इंफॉर्मेशन हम ऐड नहीं कर रहे हैं जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी। रहा सवाल कि जी पोर्ट के लोग अपने इक्विपमेंट चेंज नहीं करते हैं, दैट्स अ वैलिड पॉइंट। मेरे ख्याल में उसके लिए जो सबसे बेहतर फोरम है वो मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर है, जो कि पोर्ट के टर्मिनल ऑपरेटर्स को रेगुलेट कर रहा होता है और उनको लाइसेंस इशू कर रहा होता है। आई डोंट थिंक कि कस्टम्स के साथ शायद ये अथॉरिटी हो कि वो उनको कंपेल करे कि जी आप अपने इक्विपमेंट चेंज करें। जो मैंने पहले सवाल का जवाब दिया था कि इस वक्त पोर्ट के लोग कहते हैं कि जी हम तो एफिशिएंट हैं, हम सारा काम ठीक कर रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपना काम ठीक नहीं कर रहे हैं। तो आई बिलीव थोड़ा सा कैप्चर करने की जरूरत है इन्फॉर्मेशन को कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और वो एक सिस्टम होता है टाइम रिलीज स्टडीज का, जिसमें हर डिपार्टमेंट का टाइम रिलीज स्टडीज का सिस्टम करेगा और वो रिलीज होंगी और पता चलेगा कि कस्टम्स का क्या टाइम रिलीज है, पोर्ट का क्या है, ANF का क्या है, DPP का क्या है, बैंक का क्या है। तो आई बिलीव दैट वुड बी अ वेरी गुड पैरामीटर, जहां पे डिस्कशन स्टार्ट हो कि जी पोर्ट का 24 घंटे या 48 घंटे क्यों हैं जबकि बाकी डिपार्टमेंट्स या बैंक्स उस कार्गो को क्लियर कर चुके हैं। So I think that would be a good point to start that discussion with the terminals if we cannot start it before that. शबीर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने अरेंजमेंट की और मैं मशकूर हूँ इमरान साहब और उनकी टीम का। मेरे जो कराची में हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहिबान और तमाम जो हजरात है बहुत ज़बरदस्त ब्रीफ किया इमरान साहब ने, और ये आज का दिन नहीं है, ये सिर्फ एक दिन में नहीं, इंशाल्लाह ये वक्तन बवक्तन इस तरह का आप आगाही करते रहेंगे ताकि हमें समझ आ जाए चीज़ों को। मैं अपना तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ शबीर साहब आपको और इमरान साहब, और ये अगर इस तरह का काम हो जाए, आपको पता है कि पोर्ट्स पर क्या मसाइल होते हैं। वीबॉक का जो मिसाल दिया इमरान साहब ने, हमें खुद एक जिम्मेदार काम करते हुए होते हुए हमें अभी तक वीबॉक लेने में मुश्किलात पैदा थी हैं।
अब मैं अपने ऑफिस में बैठ के अगर वी बुक मेरा एक्टिवेट होता है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती है, तो इस तरह का ये सिस्टम आने से बहुत ज्यादा बेहतरी होती। तो मैं अपने तरफ से इस्लामाबाद की तरफ से और मैं पूरी ये टीम की शुक्रिया अदा करता हूँ, इमरान साहब की जो सरपरस्ती में, और जो हमारे वीपी साहिबान हैं और जितने भी पार्टिसिपेंट है उनका भी मशकूर हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आगे हमने फिर एक और मीटिंग है मेरी, तो मैं आपसे खुदा हाफिज कर लूंगा। तो मैं समझता हूँ कि आप क्लोज करेंगे शब्बीर साहब। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। लास्ट रिमार्क्स बाय द खुर्रम एजाज साहब, पाकिस्तान सिंगल विंडो के इस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और फिर फाइनली 1 मिनट के बाद कंक्लूड करेंगे। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब खुद बैठे हुए हैं, तो फाइनली फाइनल रिमार्क्स के बाद हम इसको कंक्लूड करें। 1-2 मिनट की बात है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं मुखातिब हूँगा हमारे जितने लोग जूम पे हैं उनका खास शुक्रिया। और इमरान साहब से जब मेरी बात हुई थी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कि जी ये लोगों को काफी ख्वाहिश है कि ये मालूम करना चाहते हैं कि पाकिस्तान सिंगल विंडो है क्या, तो आज ये हमारा बड़ा फ्रूटफुल सेमिनार हुआ। और जितने लोग हमारे जूम पे हैं मैं उनसे ये बात इनको मैं कहना चाहता हूँ कि ये जैसे इमरान साहब ने कहा कि ये पहली मीटिंग जरूर है लेकिन ये आखिरी नहीं है, और इस तरह के सेशंस होते रहेंगे। तो आप लोग प्लीज फील फ्री, यहाँ कस्टम्स के जो लोग बैठे हैं, सिंगल विंडो वाले बैठे हैं, वो भी आपके अपने लोग हैं। और न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि कराची में इनकी पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है, जो कि यहाँ एडिशनल डायरेक्टर और डायरेक्टर साहिबान है और चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं, जो पहले वीबॉक के साथ थे, पराल में थे, और अब यहाँ चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं। तो जो भी आप लोगों को इस सेशन के बाद या जब प्रैक्टिकल जब कोई चीज इंप्लीमेंट होती है तो उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जो शायद अंदाजा ना हो, तो टीचिंग प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज फील फ्री। यहाँ पे शबीर मंशा साहब जो यहाँ पे हमारे कस्टम कमेटी के कन्वीनर हैं, हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सारे बैठे हैं, और इन सब के नंबर आपके पास हैं। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल किसी भी टाइम पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सब आपके लिए बैठे हैं और वो आपकी प्रॉब्लम हल करेंगे इंशाल्लाह। इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप आए। अफनान साहब वहाँ बैठे हैं इस्लामाबाद में, ये खामोश सिपाही हैं जो काफी काम करते हैं लेकिन आज बड़े खामोशी से बैठे हैं। और यहाँ यावर नवाज, अदनान रफीक और अजीम अफजल सारे बैठे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और जिस तरह इमरान साहब ने काम किया है वो शायद अपनी खुद तारीफ नहीं कर सके, लेकिन वाकई जो कॉस्ट हमारी जो रिड्यूस हुई है इस सिस्टम में, ये हम जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे थे तो हम खुद हैरान हो गए थे कि किस तरह जो इनिशियल कॉस्ट थी उसको किस तरह कम करके लाए हैं। ये बहुत बड़ी अप्रिसिएशन है, और जब इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होगा तो बाकी सारी चीज लोग भी इसे एक्नॉलेज करेंगे। इमरान साहब एक आखिरी सिर्फ बात मैं ये करूंगा कि जो हमारा पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम है उसको मैं ये समझता हूँ कि मैं थोड़ी सी टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि आपने यहाँ भी अंदाजा कर लिया कि पोर्ट से मुतालिक लोगों को बहुत शिकायत हैं। और ये जो जिस तरह हमने कहा कि प्री अराइवल जिस तरह हम जीडी फाइल करते हैं, ड्यूटी पेमेंट होती है, इसी तरह शिपिंग कंपनी और पोर्ट वालों को भी प्री अराइवल अपनी पेमेंट्स ले लेनी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर वो पहले ले लेंगे तो उससे बहुत ज्यादा टाइम जो है फर्क पड़ जाएगा। होता इस वक्त यह प्रैक्टिकली कि जब तक वेजल आ नहीं जाता, कंटेनर डिस्चार्ज नहीं हो जाते, ना शिपिंग कंपनी अपने चार्जेस लेती है ना टर्मिनल वाले लेते हैं, उनके फिक्स चार्जेस हैं। 70% तो ग्रीन या 40% हो जाएगा। तो इसको उनकी जो टीम बैठी है सारी, इसको हम पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम को थोड़ा जो है वो प्रायोरिटी में करें। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का दोबारा। और अब ओवर टू शबीर साहब, इसको कंक्लूड करें। नहीं जी, ओवर टू वाइस प्रेसिडेंट साहब, फाइनल रिमार्क्स एंड देन वी कंक्लूड। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही? हाँ जी, मैं हनीफ लखानी, वाइस प्रेसिडेंट FPCCI। इमरान साहब और हमारे कुर्बान साहब इस्लामाबाद ऑफिस में, और मोहम्मद मियाँ साहब लाहौर में, और खुर्रम एजाज साहब यहाँ कराची में हमारे डायरेक्टर सिंगल विंडो के, और शबीर साहब, और तमाम मौजूद अफराद जो जूम पर हैं और यहाँ पर कराची ऑफिस में मौजूद हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब, आपका ये जो आज का वेबिनार था ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव हुआ। मैं यहीं पर बैठा हुआ था, मैंने जो चीज़ें जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन की, लोगों को समझाया, इट वाज वेरी वेरी गुड। और पाकिस्तान इज गोइंग टुवर्ड्स अ डिजिटल इकोनॉमी एंड इट इज अमेजिंग। डेफिनेटली सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में टाइम तो लगेगा और उसमें क्रिचेस भी आएंगे, बहुत सारे इश्यूज आएंगे, लेकिन एज यू वेल सेड दैट वीबॉक जब इम्प्लीमेंट हुआ और आज जो है उसके अंदर काफी इम्प्रूवमेंट आ चुकी हैं जो आज से 4 साल पहले हुआ था।
तो इंशाल्लाह इसके अंदर भी ये जो ग्लिचेस हैं वो भी खत्म हो जाएंगी और जो भी एप्रीहेंशंस हैं वो भी रेक्टिफाई आप भी करेंगे और सिस्टम भी इसको अपडेट करता रहेगा. In the end, I would like to thank you all for attending this seminar. Thank you very much. जी इमरान साहब, अगर कोई बात रह गई है मेरा ख्याल है we are done. Thank you very much जी. We are done and I'm looking forward to meet you again. और हमारी टीम भी अवेलेबल है. I'm also available. कोई क्वेश्चंस और मैं रिक्वेस्ट की वो अगर आप हमें हेल्प कर सकें कि अपना जो आप लोगों का सारा वो था ना कि प्रेजेंटेशन वो सर हमें शेयर कर दें ताकि हम अपनी ट्रेड बॉडीज के साथ. हाँ जी जी हो गई है सर, इतला ये हो गई है, आपकी टीम ने दे दी है. थैंक यू.